احسان ہے ہم لوگوں پہ ہر آن، اے رحمت رمضان، پھر ایک برس بعد ہے ایک ماہ کی مہمان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، بہت سی عبادتوں کے ساتھ، بہت سے اچھے کاموں کے ساتھ کہ یہ مقدس مہینہ ہمارا گزرے بہت سی نیکیاں جمع کرتے ہوئے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تمام میرے حاضرین، میرے ناظرین اور دنیا بھر سے جہاں سے ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو میری جانب سے، بنو یوتھ کی آواز کی جانب سے، ہمارے چینل کی جانب سے رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو اور خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. اور امید کرتے ہیں ناظرین آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، جہاں جہاں ہوں گے ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوں گے. اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کا جزاک اللہ، بہت اچھے فیڈ بیک دے رہے ہیں اور ٹائم نکال کے ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں. ونس اگین جزاک اللہ. جی شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، وہ جدھر سے گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، مہک جائے، دمک جائے، بنے رونق گلزار. اپنے تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کو بلال اقبال اور تیمور اکرم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین محترم، سب سے پہلے الحمدللہ آج ہم ایک اور سحری اختیار کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہمیں ایک اور روزہ اختیار کرنے کی سعادت بخشی ہے. ناظرین محترم، اسلام میں دعا کی ایک خاص اہمیت ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اسی طرح سے ناظرین محترم، صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث آئی ہے کہ جب بندہ مجھ سے مشکل میں دعا مانگتا ہے تو تین چیزیں ہوتی ہیں. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یا تو اس کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے، یا پھر اس کی دعا دیر سے قبول کی جاتی ہے، یا اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے بدلے کوئی ایک ایسی مصیبت جو اس کے اوپر آنے والی تھی وہ ٹال دی جاتی ہے. تو اور دعا عبادت کا مغز بھی ہے، یہ بھی حدیث میں آیا ہے. تو دعا کی ایک اہمیت ہے. ہم ہر مشکل میں اللہ کے نبی نے ہمیں پابند کیا ہے کہ جب تم پہ کوئی مشکل آئے تم اللہ کی طرف رجوع کرو، تم اللہ کو پکارو، تم اللہ سے مناجات کرو، تم اللہ سے التجا کرو. تمہارے 24 گھنٹے شب و روز تم اور اللہ، یہ کمیونیکیشن جو اللہ کے نبی ہمیں سکھا کے گئے. ہم اس پہ بھی آج کچھ گفتگو کریں گے. چینل 5 نیوز آئیڈی اور پلے ٹی وی کی اسکرین پر آپ ہماری ٹرانسمیشن ملاحظہ کرتے ہیں، آپ ہمیں پسند کرتے ہیں. یہ ٹرانسمیشن سحر رمضان جو پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. جی بلال، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ اچھے لگ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور آپ بھی ہمیشہ کی طرح اچھے لگ رہے ہیں. اور میں کہوں گا تیمور بھائی الحمدللہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم سے اچھی آنکھیں ہمارے ناظرین کی ہیں جو یہ ٹائم نکال کے ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں ہمارے مہمان کی جانب اور جو کہ ہمارے دل کے بھی بہت قریب ہیں. محمد ریحان صدیقی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
माशाल्लाह, और इतना मुबारक आपका चेहरा है, और जैसे ट्रांसमिशन का आगाज़ होता है आप पे नज़र पड़ती है, दिल खुश हो जाता है। ये आपका हुस्न नज़र है और रिक्कत आमेज गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल, और जज़ाकल्लाह आपका आने का, और आज के इंशाल्लाह हम सेगमेंट पे भी मौजू पे भी बात करेंगे। इंशाल्लाह। जी तैमूर भाई। जी, हमारे साथ एक और नए मेहमान, पहली दफ़ा में शो में ज्वाइन किया, कराची का एक जाना माना चेहरा, एजुकेशनलिस्ट हैं आप। मैं खुशामदीद कहूँगा आपको अपने ट्रांसमिशन में। सैयद रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मिजाज शरीफ बखैर, वल्लाह का एहसान। कैसा लगा हमारी ट्रांसमिशन में पहली दफ़ा? माशाल्लाह, जब कोई पहली पहली दफ़ा दफ़ा आता है तो हम जी। उनसे ज़रूर पूछते हैं कि आपको हमारा सेट कैसा लगा, हमारी बिल्कुल। ट्रांसमिशन कैसी लगी। माशाल्लाह पहली दफ़ा मैंने यहाँ शिरकत की जी जी, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आप लोगों से तारुफ हुआ जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, तो हमें खुद बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। जी आपसे और गुफ्तगू भी होगी। इंशाल्लाह। जी बिलाल, हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, पिछली ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ रहे हैं ये, और माशाल्लाह। गाए बगाए लोग इनको टीवी चैनल की जी, स्क्रीन के बिल्कुल। ऊपर और सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। कराची का एक जाना माना नाम, कराची की एक खूबसूरत आवाज़, मोहम्मद एहसन रज़ा कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपके तो लोग फैन भी हैं बिल्कुल, माशाल्लाह। हम खुद फ़ैन हैं हम इनके। खुद कैसे fan हैं हैं, आप? ठीक ठाक कैसे हैं? और इट्स ऑनर फॉर मी कि आपने हम लोग को टाइम दे दिया आज का, माशाल्लाह। और खैरियत से आप? चलें, आपकी जानिब इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। हम अब चलते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब, और वो जो हमारा मेहमान है नाज़रीन, आप बहुत पसंद करते हैं उनको, और जितना भी उनका फीडबैक है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे देते हैं और मैं यकीनन उन तक पहुंचाता हूं। और बहुत खूबसूरत उनका सेगमेंट होता है, और आज की बात, और हमेशा की तरह वो आज की बात करेंगे और बहुत अच्छे बयान में करेंगे। ताइब जलाल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। आप बताएं, डे बाय डे आप दिन ब दिन ग्रूम होते जा रहे हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह। अपनी गुफ्तगू में भी और वैसे ओवरऑल अपनी लुक्स में भी। बस बाकी ये माँ बाप की दुआएं हैं। वाह बिल्कुल वाह माशाल्लाह, वाह। बाकी नहीं है ही वो मेन है ही। चीज़। और है ही शॉल हम बिल्कुल। आपकी दोबारा कब देख रहे हैं यार? हम तो मुंतज़िर रह गए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कल हम आने देखें फिर आपको शॉल में। इंशाल्लाह। पता है, मुझे लगता है इन्होंने शॉल इसलिए छोड़ी है आपने कहीं मांग कहीं। ली थी। शॉल नहीं नहीं, वो मसला नहीं है। बिलाल भाई ने मांग ली शॉल थी। इसलिए छोड़ी है कि ताकि ट्रेंड कॉमन ना हो जाए। ओहो। सही है, भाई इन्फ्लुएंसर भी हैं इन्फ्लुएंसर है ना, भाई ट्रेंड को मेंटेन लीड रखना करते है हैं ना ये। ऑब्वियसली। और हमारे साथ जो एक नातख़्वां, खूबसूरत जी। नातख़्वां मौजूद हैं, हम उनका भी तारुफ करा दें बिल्कुल, बिलाल भाई। जी। सैयदा रामीन फातिमा साहिबा हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे कैसी? मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। आपकी जानिब हम फिर से आएंगे, हम ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और आज का जो हमारा मौजू है नाज़रीन, हम इंशाल्लाह उस पर बात गुफ्तगू करते जी, हैं, जी। स्टार्ट लेते हैं अपने गुफ्तगू मौजू का। और हमारी कोशिश होती है कि रमज़ानुल मुबारक में हम वो मौजू रखें कि जो हमें बहुत कुछ सीखने को मिले, हमारे नाज़रीन को बहुत कुछ सीखने को मिले। जी, जी। और मैं ये कहता हूँ कि तैमूर भाई, मौजू की तरफ हम बाद में चलते हैं, अच्छा, पहले हम चलते हैं, ठीक है, रेहान भाई की तरफ चलते हैं। रेहान भाई जी, की तरफ चलते हैं, सही। कोई बात नहीं। कैसे हैं सर? मौजू आपने मेरे इंट्रो से एक दफ़ा फिर जान लिया होगा। आज हम एक अहम मसले की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह के नबी की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी का एक मकसद, बल्कि अहम मकसद यही था कि लोगों को अल्लाह से जोड़ें, एक कनेक्शन बिल्ड करें लोगों का अल्लाह के साथ। और उस कनेक्शन का एक ख़ास पाथवे जिसको कहते हैं वो दुआ है, कि जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो हम अपने आप को कहते हैं कि अल्लाह मैं हकीर हूँ, तू परवरदिगार है, तू मालिक है, क्या बात है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी ज़ात कुछ भी नहीं है, तू सब कुछ है। तो हम ये इल्तिजा करते हैं अल्लाह से। माशाल्लाह। तो इस दुआ की क्या अहमियत है इस्लाम के अंदर? बिल्कुल, और रमज़ानुल मुबारक का महीना और ये खूबसूरत हमारा मौजू है, और मैं तो कोशिश करूँगा कि हम बहुत कुछ सीखें इनसे, और हमारे नाज़रीन भी आपसे बहुत जी कुछ सीखें। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। माशाल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सुभान अल्लाह। तैमूर भाई और माशाल्लाह बिलाल भाई, जब भी मैं इस जगह पे बैठता हूँ और आप सवाल मेरी तरफ भेज रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कठेरे में खड़ा हूँ। ऐसे हम तो सीखने के लिए- ये नहीं तिफले करें मकतब है सर, हम और- तिफले मकतब है, हम सीखते हैं नहीं, आपसे। और मुझे ये खुशी होती है जी। कि जो नई नस्ल है नाजरीन, वो इतनी जस्तजू रखती है और इतनी तलब रखती है कुछ सीखने की, कि इनके सवालात इतने ज़्यादा पुरअसर होते हैं कि यकीनी तौर पे कभी कभी मैं भी सजदा रह जाता हूँ कि इनके सवालात कितने खूबसूरत होते हैं। बाहर कैफ अल्लाह तबारक व ताला ने ये
बनी नो इंसान को तख्लीक किया, सातों आसमान बनाए, ज़मीन बनाई, तख्लीक की, 1,24,000 पैगम्बर दुनिया में उतारे और फिर एक रास्ता दिया हर इंसान को कि ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी के अंदर तुमने कुछ नेक अमाल करने हैं, कुछ बद अमाल करने हैं, क्या बात है, और बिल्कुल उन अमाल को अगर दुनिया में ही बेहतर कर लो तो ज़्यादा बेहतर ये है कि दुआ मांग लो जी। और मुझसे अपनी बद आमालियों की दुआ मांग लो, मैं गफूर रहीम हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अच्छा, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए ये मामला फरमाए, इसी तरह अपने नबियों को भी ज़िंदगी में एक दुआ ऐसी दी कि वो मुस्तजाब हो जाए। हर नबी को कहा कि एक दुआ आप ज़िंदगी में मांग सकते हैं, मैं वो कबूल कर लूँगा। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, लेकिन कुर्बान जाइए अपने आका व मौला पे, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि उन्होंने फरमाया कि मेरे मौला मेरी दुआ आपके पास महफूज है अमानतन, मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए आपसे जो है बख्शिश मांगूंगा, सुभान अल्लाह। और वो बख्शिश मांगूंगा कि आप फिर जो है मेरी इस ख्वाहिश को, इस दुआ को रद्द नहीं कीजिएगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि महबूब, हमने तुम्हारी वैसे कौन सी जो है ख्वाहिश रद्द की है, इंशाअल्लाह ताला ये दुआ जब तुम मांगोगे क़यामत में तो हम तुम्हारी उम्मत को बख्श देंगे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बात आती है दुआ की अहमियत की। दुआ बेसिकली जब इंसान अपने तमाम मामलात करने के बाद रब की बारगाह में सरबत सजूद हो जाता है और हाथ उठा लेता है और जो है दामन को बिछा देता है, आँखों को जो नम कर लेता है, गर्दन को झुका लेता है और ऐसे मकाम पे आ जाता है जिसे हम कहते हैं कि इंसान ने सरेंडर कर दिया। मौला अब मेरी कोई हैसियत नहीं, अब मेरी कोई अहमियत नहीं, अब मेरी कोई ताकत नहीं, अब मेरी कोई जुस्तजू नहीं, बस तू मेरी जुस्तजू है, तू मेरी हर तमन्ना को पूरा करेगा, हर उम्मीद को, हर आरजू को तू पूरा करेगा। तो फिर परवरदिगार कहता है, मेरे बंदे जब तू मेरे पास आ गया, जब तूने 2 आंसू मेरे लिए बहा दिए, जब तूने, इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब भी दुआ करो तो रोने की कोशिश करो, और अगर रोना ना आए तो कम से कम रोने की शक्ल बना लो। बिल्कुल ऐसा। अल्लाह को ये गिरिया करना बहुत पसंद है। ये अंबिया का वतीरा है, ये सहाबा का वतीरा है, ये वलियों का वतीरा है कि जब कोई मुश्किल पड़ती, जब कोई तकलीफ होती, जब कोई परेशानी आती, तो मुसल्ला लेके बैठ जाते और रब की बारगाह में हाथ जोड़कर ये दुआ मांगते कि परवरदिगार हमें इस मुश्किल से निकाल, और फिर रोते रहते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी उम्मत के लिए आंसू बहाए हैं। तो ये दुआ मोमिन का हथियार है। ये दुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दुआ हुआ इबादा, यानी दुआ इबादत है, और इबादत को इस तरह किया जाए कि दिल और दिमाग ये दोनों परवरदिगार के सुपुर्द कर दिए जाए। सही कि परवरदिगार अब हमारे पास कुछ नहीं, हमारी तमाम सोचें एक तरफ महदूद हो गई, हमारी सारी मेहनत एक तरफ हो गई, अब तू है और तेरा करम है और तेरा रहम है और तू तेरा फजल है, अपने फजल से हमारे मामलात को आसान फरमा दे। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान साहब गुफ्तगू कर माशा रहे थे तो मुझे सैयद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो कौल याद आ गया कि अल्लाह को 2 कतरे बहुत पसंद है, एक मैदान जिहाद में खून का कतरा और एक अल्लाह की राह में दुआ मांगते हुए जो आंसू का कतरा निकलता है। सुभान अल्लाह, तो ये अल्लाह सुभान की अल्लाह, राह में कबूलियत का बिल्कुल। दर्जा रखता और अल्लाह ताला हम सबको दुआओं में रोने की तौफीक अता फरमाए और अपने गुनाहों को की मगफिरत करवाने की तौफीक अता फरमाए। जी, खलवत को अच्छा करे, बिल्कुल, बेशक बेशक, हमारी तन्हाइयों को अच्छा करे, हमारी तन्हाइयों के गुनाहों से हमें बचाए और हमारी तन्हाइयों की परहेजगारी की तरफ हमें लेके जाए। अच्छा, ये तो हमारा मौजू था ना आज का। मैं एक सवाल मेरे ज़हन में ये आया कि इतना खूबसूरत हमारा मौजू है तो क्यों ना एक चीज़ क्लियर कर लें, हो सकता है नाज़रीन को भी एक चीज़ क्लियर हो जाए। आप एक चीज़ ये देखें कि कितनी दफ़ा हम लोग के सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मसले होते हैं, कोई जॉब से लेके होता है, किसी को किसी चीज़ से लेके होता है, तो बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि आप फलां जगह चले जाएँ, आपका काम हो जाएगा, आप इस जगह चले जाएँ,
آپ कोई है, आप उनसे दुआ करवा लें, आपका काम हो जाएगा। आप किसी जगह चले जाएं, वो आप पे दम करेंगे, आपका काम हो जाएगा। वो आपको पानी की बोतल देंगे, आपका काम हो जाएगा। इस पे क्या फरमाएंगे आप? बहुत अच्छी बात जी। देखिए, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं तुम्हारी शहरत से ज़्यादा करीब हूं। सही, तो जो तुम मांगोगे मैं तुमको दूंगा। बिल्कुल। अच्छा, मिन हैसुल कौम, हम ये समझते हैं और हमारे बुजुर्गों ने भी ये फरमाया है कि, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ये हमें तंबीह भी है कि अपने वालिदैन से दुआ कराओ, वाह वाह वाह, अपने बुजुर्गों से दुआ करवाओ, वाह ठीक। वाह वाह। और उन बुजुर्गों से और उन अल्लाह वालों से दुआ करवाओ जिनकी अल्लाह सुनता है। सही देखिए, दुनिया का एक कायदा है जी, कि जब भी आप किसी एक बड़े अफसर के पास जाते हैं तो छोटे अफसर से अर्जी जो है ना आप ऊपर पहुंचवाते हैं, तो वो फौरन काम हो जाता है आपका। सही लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो चपरासी आपको रोक लेगा, सही, वो कमरे में ही नहीं जाने देगा कि साहब बिल्कुल, मसरूफ है। बिल्कुल। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप किसी बुजुर्ग से अपने लिए दुआ करवाएं, सही, अपने वालिदैन से दुआ करवाएं, अपने बुजुर्गों से दुआ कराएं, और अपने लिए भी दुआ मांगें और तमाम उम्मत मोहम्मदिया के लिए भी दुआ मांगें। सही। वो किसी शायर ने फरमाया कि इधर नाते खैरुल वरा हो रही है, इधर नाते खैरुल वरा हो रही है, उधर मगफिरत की दुआ हो रही है, उधर मगफिरत की दुआ हो रही है। और तो मगफिरत ये जरूरी नहीं है, मैं आज इस बात को भी बिलाल भाई आपके इस प्लेटफॉर्म से जो है बयान कर दूं कि लोग कहते हैं मरने के बाद मगफिरत नहीं, हमें अपने लिए भी मगफिरत मांगना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल जो लोग जिंदा हैं उनको भी मगफिरत उनको भी। मांगनी चाहिए और अपने मरहूमीन के लिए भी मगफिरत मांगनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वो गफूर रहीम है, वो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआओं को जरूर मुस्तजाब फरमाएगा। आमीन सुम आमीन। और ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए तैमूर भाई चलते हैं, हम नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करते इससे अच्छी कोई हैं। बात जी, ही नहीं है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। एहसन रज़ा कादरी थे हमारे साथ और माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में इन्होंने नात शरीफ पढ़ी, और यकीनन हम सब तसव्वुर कर रहे थे कि हम सब मदीने की गलियों में माशाल्लाह से। और आपकी जानिब में आऊँगा, भी मुझे ब्रेक पे जाना है। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं नाज़रीन। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और ब्रेक से पहले हमने एहसन रज़ा कादरी की माशाल्लाह से खूबसूरत आवाज़ में हमने नात शरीफ सुनी और दिल को बहुत सुकून मिला। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जज़ाकल्लाह उसके लिए। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। और तैमूर भाई, मैंने 4 साल पहले जब पहली ट्रांसमिशन की थी, मैं जब से इनको जानता हूँ माशाल्लाह, और जब से इनसे माशाल्लाह एक बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जी, आप चेक कर रहे हैं, बहुत बिल्कुल। खूबसूरत आवाज़ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। 4 साल पहले मेट्रो वन न्यूज़ पे जी, जब आगाज़ किया था माशाल्लाह हमारे बिलाल भाई ने, जी, बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मोहब्बतों को सलामत रखे सबसे आमीन, पहले। आमीन, सुम आमीन। और बड़ी मेहनत है इनकी, जो कि आप खुद ही देख रहे हैं माशाल्लाह से। और बिलाल भाई तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए आमीन, सुम और आमीन। तरक्की अता फरमाए। आमीन तो इस सुम तरह- आमीन। और इसी तरह से आप भी बहुत चमक रहे हैं अपने बिजनेस में माशाल्लाह से, हम देख रहे हैं। और नात शरीफ की तो क्या ही बात है। जज़ाकल्लाह। आपकी जानिब हम दोबारा आएंगे। चलते हैं हम अपने अगले मेहमान की जी, जानिब। जी, रिजवान साहब कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह का एहसान है। और आप सुनाइए तैमूर भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, रोजे सही गुजार और रहे हैं बिलाल आपके? भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं दोनों को साथ देकर बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर जज़ाकल्लाह। मुझे। और माशाल्लाह से आप पहले- फर्स्ट टाइम हमारी ट्रांसमिशन में आए, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। जी, रिजवान साहब, आप बेसिकली हैं एजुकेशनलिस्ट। मैं आपसे ज़रा बात करना चाहूँगा एजुकेशन के मसाइल पे। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि 2 तरह का एजुकेशन सिस्टम है। एक अमीरों को फैसिलिटेट करता है और एक गरीबों को फैसिलिटेट करता है। एक पीले स्कूल वाला एजुकेशन सिस्टम है और एक वो है जो पैसों वालों का एजुकेशन बिल्कुल। सिस्टम है। तो सबसे पहले हमने देखा है सिंगापुर में आप चले जाएं, आप मलेशिया में चले जाएं, आप इवन पड़ोसी मुल्कों में चले जाएं, आप वेस्टर्न में चले जाएं, आप कहीं पर एजुकेशन में तफरीक नहीं है सर, ना सिलेबस में तफरीक है। तो ये तफरीक पाकिस्तान में हमें क्यों नजर आती है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इल्म रोशनी, जहालत अंधेरा। वाह वाह वाह, ओह, सही। अच्छा, इसमें ये क्या है, हमारी मुस्लिम कंट्री है और आपको पता है कि मुसलमान जो है इल्म के हवाले से अगर पास देखें तो सबसे आगे तरक्की याफ्ता कौम चलाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वक्त के साथ साथ ये मदूम होती चली गई। तो इनकी एजुकेशन पे अटैक हुआ, गैर मुस्लिमों ने किया, सही, सही। और हम जो है उसको संभाल नहीं सके।
हाँ सही सही। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास पाकिस्तान में दो नहीं बल्कि बहुत सारी हमारे पास सिलेबस मुख्तलिफ है। आगा खान का सिलेबस है, फेडरल का सिलेबस कराची है, बोर्ड है, कराची बोर्ड है, सही। ओ लेवल सिस्टम है, O-level है, बाहर का सिस्टम जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। सही, अब ज़ियाउद्दीन बोर्ड भी आ है। गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें यह है कि एक हमारा जैसे सिस्टम था मैट्रिक बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड, सही। इसमें से बच्चा निकलता था, और जब गरीबों का था, मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स थे इसके अंदर, सही ना। लेकिन अब अच्छा, अब प्लस ये कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है यही सबसे ज्यादा खराबी का बाइस बना। अच्छा सही, सबसे ज्यादा, क्योंकि आपने पूरे साल भर स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, स्टडी साल भर उसने की, और 3 घंटे के अंदर अंदर रिकॉल करना होता है उसको। सही, तोता बना दिया, रट तोता के आ बना जाओ। दिया। बिल्कुल। अब पूरे साल स्टडी की, सही है। अब आपने 3 घंटे के अंदर जी, जो है वो recall सारा करना का सारा कोर्स को रिकॉल पूरे करना है। साल का, अब बिल्कुल। 3 घंटे में हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो, बिल्कुल कोई ऐसे। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो आपका साल ही गया, कोई इमरजेंसी हो कोई जाए, इमरजेंसी हो, सप्ली सही, लग गई आपका आपकी। साल और सम टाइम आपका माइंड ही ऐसा फ्लश एकदम से हो जाता है कि कुछ याद ही आपको नहीं सर रहता आप इस जो- तरफ आ रहे हैं तो आप ये भी देखिए, हमारे इम्तिहानात उस वक्त होते हैं जब जी। कराची में शदीद गर्मी होती है, बिल्कुल। मार्च अप्रैल, और पंखे हमने देखा है कि जनरेटर नहीं चल रहा होता, लाइट सही। चली जाती है, लोड शेडिंग। मैं कह रहा हूँ कि 3 घंटे आप किसी को बैठा के बोलें कि जो आता है वही लिख के दिखा दो इतने सही। पसीने में। और प्लस ये कि जी। ये देखिए कि अब एक अगर वो मुकम्मल कर लें रियान भाई, माजरत जी जी, जी, इसके बाद हाँ, अब प्लस ये कि अब 2-3 साल से आप ये देखें कि रमजान में इम्तिहान हो रहे हैं, जी बिल्कुल, बताइए, उनकी ईद भी खराब हो गई बच्चों की, हाँ सही। बिल्कुल रमजान भी खराब हो गया, बिल्कुल ऐसे। और उनके Common साथ sense साथ है। पूरी फैमिली की, पूरी क्योंकि पूरा family फोकस होता है बच्चा बेचारा। जहनी हाँ जो है वो कंफ्यूज है जहनी तौर पर, सही, सही। अच्छा, प्लस ये कि कोर्स हमारे पास 2 सिस्टम, 3 सिस्टम, 4 बिल्कुल। सिस्टम से। जी, अच्छा, मैट्रिक बच्चा कर रहा है, मैट्रिक करने के बाद जब वो आगे एजुकेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसका जो टेस्ट है, जी, टेस्ट किसके हवाले से आता है? मैट्रिकुलेशन के हवाले से, तो उसमें तकरीबन 20% क्वेश्चन। सही, एक बच्चे ने ए ग्रेड लिया, बिल्कुल सही, सही, और उधर से आगे ओ लेवल वाले भी आ रहे हैं, फेडरल बोर्ड वाले भी आ रहे हैं, बिल्कुल आगा खान बोर्ड के भी आ रहे हैं, बिल्कुल सही। तो अब जिसने मैट्रिक ने ए ग्रेड लिया, लेकिन जब वो टेस्ट के लिए इंटर होता है तो 0, हाँ सही, क्योंकि सिलेबस जो है वो बन रहा है वो मैट्रिक बोर्ड के हवाले से नहीं बन रहा, बल्कि ओ लेवल के हवाले लेवल से के हवाले syllabus से बन बन रहा रहा है, है, ओ बिल्कुल लेवल का ठीक बच्चा कह भी वहां पर है, सिलेबस बन रहा है फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से, फेडरल गवर्नमेंट का स्टूडेंट्स भी आगा खान के हवाले से, क्योंकि आगा खान का भी तो बच्चा है, बिल्कुल ऐसे ही, राइट। तो सही। जो है अच्छा टैलेंट जो हमारा तबाह हो जाता है। ये तो बात बिल्कुल ठीक मैं है। खुद जो है इस शोबे से तकरीबन 20 साल से वाबस्ता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स को देखा मैंने इंटर के बाद जो है वो डिसऑर्डर हो जाते हैं, सही, सही, और एजुकेशन को कंटिन्यू जारी नहीं रख पाते। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। वजह ये कि सिलेबस जी। सिस्टम। रियान साहब ने सही। भी एक सवाल आपकी बिल्कुल, तरफ जी। किया था। रुझान बढ़ गया है मुल्क में या शहर में हमारे, उससे भी बच्चों के जो रुझान है पढ़ाई के ऊपर वो एक तो कम हो गया है, और जहनी तौर पे इंसान के ये होता है जो पढ़ने वाला बच्चा है वो कहता है जो चीटिंग करने वाले हैं वो तो पास हो जाएंगे, मैं रह जाऊंगा। सही, ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है। मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, नाम नहीं लूंगा कॉलेज जी का, जी जी, नया कॉलेज था, बहुत जबरदस्त बिल्डिंग बनाई उन्होंने, प्राइवेट कॉलेज, वो गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छा, गवर्नमेंट government। कॉलेज के हवाले से बुलाया उन्होंने मुझे, सही। अब एग्जाम के दौरान जो है वहां पर पार्टी के स्टूडेंट्स भी थे, पार्टी के Political स्टूडेंट्स, हाँ, हमारे मामला आने से जो था। पहले वो क्लास के अंदर पॉलिटिकल हर मामला एक से पैसा लिया। अच्छा, अब जब वो अब हम हो ही सकते हैं अब इस मेरे पर क्लास ली तो मैंने कहा कि भाई जो है ना आप लोग क्लास से बाहर निकले, अच्छा, और सही, ऑल द स्टूडेंट विल बी sit on the sit chair, on the chairs exactly, and don't try to illegal ways. very nice, किसी okay. इलीगल वेज में आपने नहीं जाना, सही, और Definitely. प्रॉपर स्टडी करनी है। अगर चीटिंग का मामला है तो वो मैं बिल्कुल सही, यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं करूँगा। लेकिन प्रिंसिपल ने बुलाया जी। दूसरे दिन और कहा रिजवान सर जरा हाथ, हल्का हल्का रखें, सही, ये मामला हैं, ये तल- जी। दूसरे दिन जो पोजीशन हुई जो वहां पर जो सबके सामने थे, ऑब्वियसली हाँ, सही। बच्चे हाथों में कॉपियां पेपर, फिर हल्के हाथ में तो यही होगा ना, सही, तो पुश पनाही जी। भी होती है पीछे बिल्कुल। से, क्योंकि वो डिस्टर्ब भी करना है मुस्लिम सही। स्टूडेंट्स को, न्यू जनरेशन को। अभी जो अटैक है वो न्यू जनरेशन पर है, हम सही। हमारे पर
ओवर एजेस के ऊपर नहीं है, क्योंकि जी। हमें तो उनको पता है कि 5 साल 6 साल 10 साल के बाद इनको दुनिया से गुजर जाए। सही, अब आने वाली जो नस्ल है उनको हमने डिस्ट्रॉय करना। बिल्कुल ऐसे ही। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम नाज़रीन, अपने सेगमेंट का आगाज़ कर रहे हैं, जो सेगमेंट का नाम है आज की बात। और सेगमेंट में हमारे साथ होते हैं तैयब जलाल। वंस अगेन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह से जो आपका सेगमेंट है आज की बात, जो आपकी एज के बच्चे हैं और या जो बड़े हैं वो बहुत कुछ सीख रहे हैं इस सेगमेंट से। तो मैं ये चाहूँगा कि हम इस सेगमेंट को और इंटरेस्ट बनाते हैं, और जो आपने पिछले सेगमेंट्स में बात की थी शॉर्ट्स की के बारे में, आई होप कि वो सब समझ गए हों। आज की बात क्या है और क्या नई बात आप हमसे करेंगे? ठीक। तो आज की बात का आगाज़ मैं एक शेर से करूँगा कि चलती फिरती हुई आंखों से अज़ान दिखती है, जी, चलती फिरती आंखों से अज़ान दिखती है। ओहो, तैमूर भाई और बिलाल भाई, इस जुमले पे ज़रा गौर कीजिएगा जी जी, कि मैंने जन्नत तो नहीं देखी, वाह वाह, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मगर मैंने माँ देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। आप सबको मेरे जी। शेर से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज का जो मेरी आज की बात है जो वो माँ से के related ऊपर है, है। बिल्कुल ऐसे ही है, सही, माशाल्लाह। तो माँ जो एक है, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी हस्ती है जिसका कुरान पाक में भी जिक्र हुआ है, और वो जिक्र ऐसे हुआ है कि माँ के पैरों तले जन्नत रख दी गई है। बिल्कुल। और आज की जो शॉर्ट की है वो ये है कि अगर आपको, हर मुसलमान का एट द एंड यही गोल होता है कि उसको जन्नत हासिल करनी है। सही, तो बिल्कुल। वो शॉर्ट ये है कि अगर आपने माँ को हासिल कर लिया तो आपको जन्नत हासिल होगी। वाह क्या वाह, बात, क्योंकि अल्लाह ताला भी सुभान, फरमाता है कि जितना तुम माँ की खिदमत करोगे मैं तुम्हें उतना पसंद करूँगा। बेशक बेशक ऐसे ही। तो इसके हवाले से मैं आपको अपने एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ जी जी जी। कि अभी मैं थोड़े दिनों पहले उम्रे से आया था। माशाल्लाह। Like, अच्छा, माशाल्लाह, एक उम्रा दो- किया हुआ आपने? जी जी, कितना एक टाइम दो महीने पहले। अच्छा, तो माशाल्लाह। उम्रे से आने के बाद ही मैंने सोचा कि मैं कोई एक ओल्ड एज हाउस विज़िट करूं। अच्छा, सही, तो मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ विज़िट किया, वहाँ की बहुत सारी माओं से मिला, जो कोई उनसे भी मिला जो मेरी नानी नानू की उम्र की थी, कोई बिल्कुल दादा सही। दादी की थी, और कोई मेरी माँ की उम्र की थी, कोई मेरी माँ से भी छोटी थी, क्या तो उनसे भी मिला। सही। तो उनसे मिलके मेरे को इतना अच्छा लगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं उम्रे से आया था, तो उम्रे से आया था तो मैं वहाँ उनके लिए जमजम और खजूरें लेके गया था सऊदी अरब, माशाल्लाह, ताकि उनको खुशी हो। और जब मैंने उनको वहाँ की सौगात दी तो उनकी आंखों में, बिलाल भाई आप आंसू हो गए। नहीं यकीन कर पाएंगे कि इतनी खुशी थी, और हाँ। उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनका कोई घर का बेटा या उनका कोई घर का क्या अफराद बात ही है, उनको कुछ दे रहा सुभान है। अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि उनके पास वहाँ रहने की सब कुछ, हर एक अशिया है, खाना पानी, बिल्कुल सही, रहन सहन, बिल्कुल मेडिसिन, जी। बट उनके पास अपना बेटा नहीं है। ओहो, तो बस मैं एक ही पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि अपनी माँओं का ख्याल रखें। बिल्कुल सही, वो जो बिल्कुल। चाहते हैं उनकी तरजीह करें, उनकी बात पे अमल करें और उनसे सीखें। बिल्कुल सही, और जैसे कि बिलाल भाई आपको पता है, माँ की जो दुआ होती है वो अर्श हिला देती है। क्या वाह, बात वाह, है, वाह, बेशक, इसमें बेशक, कोई शक नहीं, बेशक। इसमें जैसे कोई कि शक अब नहीं। मैं जी, यहाँ बैठा हूँ, आप बैठे हैं, और बिल्कुल। बाकी दीगर अफराद बैठे हैं, बिल्कुल। तो मैं ये सोचता हूँ कि सब अपनी माओ की दुआओं की वजह दुआओं से की बैठे वजह कोई से शक ही बहुत नहीं। अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि वो जी। दुआएं करती हैं तो ही हमें अपना मौका मिलता है ग्रो होने का, और Definitely, उनकी दुआओं की बिल्कुल वजह से ही, जैसे कि अभी अनु ने रेहान सर, फरमाया जी। कि रेहान सर ने फरमाया कि अपने माँ बाप से दुआ करवाएं, अपने बड़े बूढ़ों से दुआ करवाएं। अगर माँ बाप दुआ करेंगे तो दुआ कैसे कबूल नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही, सही, तो हमें बस ये चाहिए कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे माओ का, क्योंकि अल्लाह ताला भी जी। एक 70 ममताओं का मालिक है, और अगर हम उससे मांगते हैं तो हमारी जो दुआ हम मांगते हैं वो कबूल होती है। बेशक तो बेशक। हमें चाहिए बस कि हम अपनी माँ का ख्याल रखें, वो जी। जो कह रही हैं उनकी बात पे अमल करें, और बिल्कुल। उनसे सीखने की सादत हासिल करें। आमीन सुम आमीन। और देखिए बातों से जी बिलाल मुझे एक शेर याद आ गया। जी जी प्लीज कि बस एक खुदा नहीं होती, जी। बस एक खुदा नहीं होती, वरना माँ क्या नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान इसमें अल्लाह। मेरे को भी एक बात याद जी, आई जी। कि जिसके पैरों तले जन्नत है, जिसके पैरों तले जन्नत है, तो उसके सर का क्या मकाम है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। अच्छा ताइब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरा पर्सनल है। माशाल्लाह से फर्स्ट डे से जब से आप आए हैं
اور آپ کا جو ہم سیگمنٹ کرتے ہیں آج کی بات وہ بہت پسند کیا جاتا ہے اور یقیناً جتنے ہمارے بڑے حضرات یہاں پہ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پسند کرتے ہیں, کیمرے پہ جو ہیں ناظرین وہ بھی سب پسند کرتے ہیں. لیکن آج کا سیگمنٹ ماشاءاللہ سے آپ کو بہت اچھا تھا اور وش یو آل دا بیسٹ. اسی طرح آپ گروم ہوتے رہیں. اور ناظرین یہ سیگمنٹ رکھنے کا ہمارا ریزن ہی یہ تھا کہ جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہمیں گھر پہ دیکھ رہے ہیں ان کو موٹیویشن ملے کہ اور آپ تک ان کا پیغام پہنچے اور جتنا ہو سکے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کریں. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, دو کر لیں آپ. یہاں پر میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ یہ بنو یوتھ کی آواز کی جو آپ کاوش دیکھ رہے ہیں وہ یہ بچہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے بنو یوتھ کی آواز کی وجہ سے ہی تو ہمیں موٹیویشن میں وہی آ رہا ہوتا ہے کہ یہ عمر دیکھیں آپ اس بچے کی اور اس کی گفتگو دیکھیں ریان صاحب, ماشاءاللہ. مطلب ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہم اس عمر میں ایسے گفتگو کریں کہ یہ ایک بہت بہترین موٹیویشنل اسپیکر بنے واہ انشاءاللہ. اور یہ ماشاءاللہ ویسے بھی ان کی پوزیشن ہے, آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ یہ انفلوئنسر ہیں اور آپ یہ اپنی چیزیں بھی ڈالتے رہتے ہیں انسٹاگرام پہ اور آپ ان کو مزید فالو کریں کیونکہ دیکھیں ہم دوسری چیزوں کو تو ہم بہت فالو کر رہے ہوتے ہیں, ہم اسلامک چیزوں پہ. اور جیسے آپ نے کہا نا جو ان کی عمر ہے اور جو یہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں سب سے زیادہ آپ دیکھیں ان کی سوچ, ان کی نیت, اس پہ سلام ہے ماشاءاللہ سے. میں سلام کروں گا آپ کے ماں باپ کو کہ اتنی اچھی تربیت کی آپ کے. بالکل میرے ماں باپ کی وجہ سے ہی میں آج یہاں موجود ہوں کیونکہ ان کی دعائیں اور ان کی سپورٹیشن میرے ساتھ جاری ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک جاری رہیں گی انشاءاللہ. اور ایک چیز میں آپ سے اور کہنا چاہوں گا, دیکھیں ماں باپ کی تو دعا ہوتی ہے آپ کے سب کے ساتھ, لیکن یہاں پہ جتنے بڑے بیٹھ رہے ہیں نا ان سب کی دعائیں آپ کے ساتھ, اور اسکرین پہ ہماری جتنی مائیں دیکھی ان سب کی دعائیں آپ کے ساتھ. جزاک اللہ ایک بار پھر سے. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں, ہماری بہن ہے ہمارے ساتھ. جی اور جی سیدہ رامین فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت خوبصورت آواز کی مالکہ ہے ماشاءاللہ. اور میں چاہوں گا اس سے پہلے آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال آ رہا تھا, ان کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں. ریحان سر سے آپ مجھے سوال کرنا اگر ہم سوال کی طرف آتے ہیں تو ریحان صاحب ہم دعا پہ گفتگو کریں. بالکل معاف کریے گا, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک اور کانسیپٹ اہل سنت کے خاص طور پر یہ پایا جاتا ہے, تو آپ اچھا ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں اور میں یہ سوال آپ سے کر لوں کہ جو بزرگ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں کیا ہم ان کے وسیلے سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں طائب بھائی کے لیے ایک بات کہوں گا کہ کیونکہ مجھے بڑا پیار ہے ان سے, اور بلال بھائی گر جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری. صحیح ماشاءاللہ, کیا بات ہے. جو جوانی کی جو توبہ ہے نا وہ پیغمبروں کا شیوا ہے. بالکل. اور یہ بچہ نہج پہ جائے گا انشاءاللہ تعالی, اللہ پاک اس کو سعادتوں میں رکھے آمین اور ثم آمین, عافیت میں رکھے اور معاملات اس کے جو ہے چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہوں. بس یہ میری دعائیں تھیں اس کے لیے. باہر کہ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہا کہ تم قرن چلے جاؤ, وہاں میرا ایک عاشق ہے جس نے مجھے کبھی نہیں دیکھا, اور اس عاشق کے پاس جا کر اس کو میرا یہ جبہ دینا اور اس سے دعا کی درخواست کرنا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور آپ کے ہوتے ہوئے اور سارے معاملات ہوتے ہوئے ویسے کرنی سے دعا کی درخواست کی جائے؟ کہا ہاں, کیونکہ عرب کا ایک قبیلہ تھا بنو قلب, اس کی بکریوں کے جتنے بال تھے نا ویسے کرنی کی دعا سے وہ اتنے لوگ قیامت میں جنت میں جائیں گے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ, کیا بات. تو جب یہ دونوں اصحاب گئے تو حضرت اویس قرنی جو ہے وہ نماز ادا کر رہے تھے, نماز طول پکڑ گئی. صحیح. اللہ کے عشق میں غرق ہو کے نماز ادا کی ہوئی ہے. یہ دونوں اکابرین کھڑے رہے. ایک وقت آیا کہ اویس قرنی نے نماز روک دی اور کہا اے علی, اگر تم لوگ نہ آتے تو آج میں ساری امت کو بخشوا دیتا. دعا کی یہ طاقت ہے, اور دعا کی جو جن بزرگوں سے کرائی جاتی ہے ان کی یہ طاقت ہے. صاحب مزار یا صاحب قبر وہ زیادہ اسٹرانگ اور پاورفل ہوتا ہے بنسبت دنیا کے لوگوں سے. جزاک اللہ.
کیونکہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کا حوالہ یہ دوں گا کہ آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں فرماتے کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی, تو آج 50 نمازیں ہمیں پڑھنی پڑتی. بالکل بالکل. یہ 9 چکر لگے ہیں پروردگار کے پاس اور واپس حضرت موسیٰ کے پاس, تو یہ وسیلہ ہے حضرت موسیٰ کا کہ یہ نمازیں 5 رہ گئی. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, ہم چلتے ہیں اپنی بہن کی جانب. ایک بار پھر سر ان سے گزارش کرتے ہیں کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدہ رامین فاطمہ صاحبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور ناظرین جاتے ہیں بھی ہم چھوٹی سی ایک بریک کی جانب, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ٹرانسمیشن میں ابھی ہمیں 2 خوبصورت مہمانوں نے جوائن کیا ہے, اور ایک جن کی میں بات کر رہا ہوں ابھی, وہ بہت خوبصورت آواز کی مالک ہیں وہ, اور ہماری ٹرانسمیشن کا بہت خاص حصہ ہیں وہ, اور آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے, اور بہت مختلف چینل پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں. ہم نے ان کو ہولڈ کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے, وہ ہمیں ٹائم دیتی نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ ہر چینل پہ وہ آپ کو دکھتی ہیں, اور ماشاءاللہ سے کیونکہ ہے ان کی اتنی خوبصورت آواز ہے, اور جب وہ نعت پڑھتی ہیں ماشاءاللہ سے باقاعدہ نعت کے ساتھ ساتھ ان کے پڑھنے کے جو آداب ہیں اس پہ بھی بہت بات ہوتی ہے. اور آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے. میرے ساتھ ہے طیبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ سے. جی. اور ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت مہمان, شہر کراچی کا بہت خوبصورت نام, میرے بہت اچھے بھائی, میرے دوست, اور اب تو میں کہہ سکتا ہوں کہ عالمی شہرت یافتہ نام, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیونکہ آپ پاکستان سے باہر بھی آپ کو بہت زیادہ سنا جاتا ہے, اور مختلف چینلز پہ, RTV چینلز پہ آپ دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. میری مراد جناب. السلام علیکم طارق بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. طارق اسماعیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل بالکل. سب سے پہلے مجھے جلدی سے بتا دیں, طارق اسماعیل طارق, جی اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے؟ ایکچولی میرے والد صاحب کا نام جو ہے نا وہ اسلام تھا. اچھا تو ماشاءاللہ. جب اسٹارٹنگ جب میں نے نعت خوانی کی فیلڈ میں آغاز کیا اپنا, تو اس وقت طارق اسلام, تو جب میری پہلی انٹروڈکشن تھی لب بیک ٹیلی ویژن پر, بالکل صدیق اسماعیل صاحب نے میرا میں ریکارڈنگ کروایا. تو جب ریکارڈنگ کر کے جب میں ریٹرن آنے لگا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے نام کیا لکھوایا, تو میں نے طارق اسلام کہا. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد طارق اسلام کی جگہ طارق اسماعیل تم نے لکھوایا. ماشاءاللہ. تو اس دن سے یہ 2007 میں یا 6 میں میری ریکارڈنگ تھی, تو اس دن کے بعد سے یہ طارق اسماعیل تو چلتا رہا ماشاءاللہ. اور اس دن کے بعد سے آپ کی لائف میں, آپ کے ہر ایک کام میں برکت بھی بہت آئی ہے, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. آپ جس طرح سے چمک رہے ہیں ہم, اور انشاءاللہ ایسے ہی چمکتے رہیں آپ. جزاک اللہ. ٹرانسمیشن میں آنے کا ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور تیمور بھائی جو ہمارے گیسٹ ہیں نا ماشاءاللہ, وہ بھی بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں. جی بالکل. یہ تو آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش. بسم اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ سر, کیا بات ہے. جزاک اللہ. بہت اچھے. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں ہم, اور تیمور بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک خاص جو آپ کی جاب ہے وہ بھی کریں, اسپانسر کو شامل کرتے ہیں ٹرانسمیشن میں. بالکل. ہم خاص طور پر اپنے ان تمام گفٹنگ پارٹنر کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیں اس پوری ٹرانسمیشن میں خاص طور پر ہمارے ساتھ رہتے ہیں. موسیٰ برادرز کیٹل اینڈ گوٹ فارم اور حبیب ہومیو کلینک HHC. میں ان دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ دونوں گفٹنگ پارٹنر ہیں ہمارے, اور ہماری ٹرانسمیشن کو, خوبصورت ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلتے ہیں سر کی جانب چلتے ہیں ماشاءاللہ سے. جی طارق بھائی, آج آپ کیا سنا رہے ہیں پھر ہمیں؟ وہ کلام جو وجہ شہرت بنی میری. اچھا ماشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. جتنا تیمور بھائی نے بتایا تھا اس سے بہت اوپر پایا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اور
اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کی آواز کو آپ کو آباد رکھے, آمین سم آمین. اور ناظرین ٹرانسمیشن بڑھاتے ہوئے احسن بھائی کی جانب چلتے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ بھی بہت ٹائم سے نعت پڑھ رہے ہیں, بتائیں گے مجھے کتنا ٹائم ہو گیا؟ ماشاءاللہ الحمدللہ بچپن سے ہی سرکار کا ذکر ہو رہا ہے, سبحان اور اللہ, یہ سب ہماری ماں باپ کی دعائیں بے ہیں جو شک, کہ الحمدللہ, بے شک, اور ہر بچہ ہی سرکار کا ثنا خواہ ہے, کیونکہ درود شریف پڑھنے والا ہی سرکار کا ثنا کیا خواہ بات ہے, ماشاءاللہ, بے شک, بے شک. اور رمضان المبارک میں کیا مصروفیات ہے, کس طرح سے روزے بھی ہیں, آپ کا بزنس بھی ہے, اور پھر ماشاءاللہ سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں مختلف چینلز پہ بھی آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ آج ہم نے آپ کو پکڑ لیا ہاتھ میں, کہا آج آپ ہمیں ٹائم دیں. جی سب سے پہلے تو مصروفیات جو ہے کاروبار کے حوالے سے, کیونکہ اور میں کاروبار کو پہلے ترجیح دیتے ہم, اس کے بعد پھر ہم محفلوں کو زیادہ دیں, کیونکہ ہمارا جو پیشہ کہہ لیں اور خاندانی نام تو بزنس مین کی طرح ہی الحمدللہ, اور ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے الحمدللہ یہ سب ملا ہے, تو اس نام کو رکھتے ہوئے تو بزنس کی طرف زیادہ اختیار رکھتے ہیں, پھر اس کے بعد سرکار کی ثنا خوانی پہ زیادہ توجہ رکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ مصروفیات جو ہے رمضان کی زیادہ تر صبح سے لے کے شام تک ماشاءاللہ کہ نماز روزے یہی چیزیں, اور کاروبار کو تھوڑا سا روز ہے. صحیح ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ آج تو ان کا فرسٹ ڈے ہے, تو ہم نے ان کے انٹرو تو آپ کا انشاءاللہ کل سے ہم آپ کے بزنس پہ, آپ کی جرنی پہ, چیزوں پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں 2 ننھے ستاروں نے جوائن کیا, تو آئیے ان سے بھی ملاقات آپ کی کراتے ہیں. جی السلام علیکم ابو بکر مکی صاحب اور داؤد مکی صاحب, کیسے ہیں, کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں, اور ماشاءاللہ آج خوبصورت لگ رہے ہیں آپ, اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پھر آج تیاری کے ساتھ آپ آئے ہیں؟ تیمور بھائی ماشاءاللہ سے یہ ہمیشہ تیاری کے ساتھ آتے ہیں, ہمیشہ آتے ہیں. ان سے آپ کی جانب ہم دوبارہ آئیں گے. طیبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور طیبہ کیسی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. مجھے یہ بتائیں کہ اتنا خوبصورت طریقے سے آپ ہمیشہ سے کلام پڑھتی ہیں, آپ کے گھر کی کیا فیڈ بیک آتا ہے, کون کون ٹرانسمیشن دیکھتا ہے؟ کیونکہ ٹائم ایسا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے سب نہیں بھی جاگ رہے ہوتے ہیں, کچھ سو رہے ہوتے ہیں, صبح کی روٹین ہوتی ہے, تو زیادہ گھر میں کون ہوتا ہے؟ اب جیسے میرا ہے, میری سب سے زیادہ والدہ ہیں نمبر 1. وہ ایون جب جس چینل پہ میں آ رہا ہوتا ہوں نا, وہ میری مارکیٹنگ کرتی ہیں پورے گھر, پوری فیملی میں انہوں نے میسیجز کرنے, گروپ میسیجز کرنے کہ بلال اس چینل پہ آ رہا ہے. اس کے بعد پھر میری سسٹرز ہیں, وہ بہت سپورٹ کرتی ہیں, بھائی ہیں وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے میرے بھانجے بھتیجے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت سپورٹ کرتے ہیں, بھنوئی میرے بہت کرتے ہیں. آپ بتائیے آپ کی فیملی میں کون زیادہ سپورٹ کرتا ہے سب سے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں یہاں آتی ہوں, میری سسٹرز وغیرہ گھر میں خیر سب جاگتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ ہمارے گھر میں عبادت کا, صوم صلات کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے ماشاءاللہ. اور ایک گھر میں پڑھنے والی ایک میں ہوں ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد چھوٹی سسٹر ہے, وہ خیر اتنا پڑھنے جاتی نہیں ہے, لیکن وہ گھر میں میرے ساتھ ہوتی ہے. لیکن ان کو شوق ہو گیا نا آپ کو دیکھ دیکھ کے. اور ایک چھوٹا بھائی ہے جو 10 سال کا, وہ بھی میرے ساتھ دیکھ دیکھ کے بہت کرتا ہے. دیکھنے کی بات ہے, یہ پروگرام کون دیکھتا ہے؟ تو سوائے میری بہن بھائیوں کے علاوہ میری والدہ نہیں دیکھتی. کیا ریزن ہے یہ؟ وہ کہتی تمہیں گھر پہ برداشت کرتی ہوں, میں وہاں بھی برداشت کروں. نہیں لیکن گھر پہ تو آپ نعت تو نہیں پڑھتی ہوں گی نا, یہاں پہ میرا منہ بند نہیں ہوتا. وہ تو مجھے اندازہ ہے, میرا منہ بند نہیں ہوتا, میں بہت بولتی ہوں. صحیح ماشاءاللہ. نہیں اللہ آپ کو آباد رکھے اسی طرح سے. لیکن میں جب گھر میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہوں نا, میری والدہ باقاعدہ مجھ سے فرمائش کرتی ہیں. اچھا, باقاعدہ فرمائش کرتی ہیں, کہتی کلام سناؤ. میں دیکھیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے شک سنے نا, لیکن کان آپ کی طرف ہوتے ہیں, اور جہاں آپ چپ ہوتی ہیں وہ آپ کی طرف آ جاتی ہیں. وہ ان کے لیے, میں اپنی والدہ کے لیے یہ کہوں گی کہ وہ کھلاتی سونے کا نہیں والا ہے ویسے, لیکن دیکھتی شیر کی نظر سے. ماشاءاللہ. نہیں میں گزارش کروں گا کہ آنٹی سب سے پہلے السلام علیکم. اور دیکھیں آپ, کیونکہ ہمیں تو ماشاءاللہ بہت نصیب والے کہ ہمارے ساتھ طیبہ ہوتی ہیں اور ایک خوبصورت آواز میں ہمیں سناتی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہماری آڈینس جتنی بھی ہے نا وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے. تو کیا پڑھیں گی آج, کون سی نعت؟ میں آج بہت پیارا کلام پڑھ رہی ہوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا, اور وہ خاک پر ہے بیسیکلی, جو ہم ہیں خاک, اس میں سبحان اللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے, اور ہم یہ دعا کریں گے کہ آپ کی مدد یہ سنیں ماشاءاللہ. آمین. میں خاص طور پر میں
कहना चाहूँगा कि ये आला हजरत का कलाम था, फाजिल बरेलवी, इमाम रज़ा ख़ां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, और माशाल्लाह। उनके आप जितने भी कलाम देखेंगे इसके रसूल में डूब के वो कलाम लिखते थे। बेशक क्या बेशक, लिखा है उन्होंने कि आज तक जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है बस अभी अभी लिखा गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी खूबसूरत गुफ्तगू के साथ साथ हम जाएंगे नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक में, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कहते हैं नाज़रीन ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और हमें कुछ नए मेहमान ने ज्वाइन किया, तो मैं चाहूँगा तैमूर भाई उनकी तारुफ करवाइए। बहुत खूबसूरत आवाज़ शहर कराची की यासिर रज़ा कादरी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज शरीफ बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी माशाल्लाह मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर हम आपको देखते रहते हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी हम आपको फॉलो करते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और एहसन रज़ा कादरी हमारे साथ बहुत साथ देर से मौजूद हैं और माशाल्लाह से मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी लेकिन हमारी गुफ्तगू की तरफ बात चली गई थी, तो अभी आपसे गुजारिश करते हैं कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाइए। कौन सी नात? कोई ऐसी नात सुनाएंगे बस मज़ा आ जाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या सय्यदी या रसूलुल्लाह। रमज़ान शरीफ का महीना है और इससे कबल मैंने कलाम पढ़ा था जी बिल्कुल, उसी कलाम को मद्देनज़र रखते हुए और बात करते हैं मदीने की, क्योंकि लबों पे मदीना मदीना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़िले रवां दवा है और ARQ ट्रैवल एंड टूर खूब, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी नाम का किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, बिल्कुल ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़िले जा रहे हैं मुझ जानिब, मुझे भी सरकार की तरफ से बुलावे की हाज़िरी अल्लाह करे हो जाए इंशाअल्लाह। इसी मद्देनज़र रखते हुए कलाम पढ़ते हैं। शायर क्या लिखते हैं? मदीने से बुलावा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाक अल्लाह। और अल्लाह ताला आपका पढ़ना और हम सब का सुनना कबूल अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जब ये शेर आता है कि ये चक्की से हाँ हाँ चल रही है, क्या कहने उस बात। अल्लाह के नबी के बेटे का जब इंतकाल हुआ तो काफिरों ने बड़ा उस पे वो बात की कि अब नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी, किस तरह से, और अल्लाह ने सैयदा पाक के सदके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आज तक दुनिया में जितने सैयद मौजूद हैं वो सैयदा पाक के सदके। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की नस्ल अगर आज तक मौजूद है तो वो सैयदा पाक के सदके। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दोनों मेरे बेटे हैं। मैं तो नाम लेता हूं तो दिल भर आता है। बेशक बेशक। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद, क्योंकि इतना खूबसूरत एक समा आपने बांध दिया और ये रहमतों बरकतों का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। हम आते हैं आपकी जानिब, और माशाल्लाह से तैमूर भाई ने आपका जब इंट्रो दे रहे थे बताया था कि पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से आपने अपनी आवाज़ का एक जादू, एक रहमत की है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो हम उस पर थोड़ी सी तैमूर भाई बात करते हैं। जी बिल्कुल। मेरे कहने के का मुराद था कि इंटरनेशनली मैं देखता हूँ कि लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं इनके मुताल्लिक, अच्छा, इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच चुकी है माशाल्लाह। तो देखें बात वही है ना कि अगर आप नहीं है, आपकी आवाज़ वहाँ है, तो एक ही चीज़ तारिक भाई इस पे क्या कहेंगे? माइक अगर लेना, अच्छा माइक लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है जी। सबसे पहले रब का शुक्र अदा करता हूँ माशाल्लाह। इसमें सबसे जो अहम किरदार है मेरी वालदा का है माशाल्लाह माशाल्लाह जी। बेशक उन्होंने हर मौके पर मुझे सपोर्ट किया। मेरे वालिद मरहूम का जब इंतकाल हो तो उससे कबल उन्होंने मुझसे फरमाया कि एक वक्त आएगा, अभी सिद्दीक इस्माइल साहब हैं, आने वाले वक्त के सिद्दीक इस्माइल तुम बनोगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जी जी। और वो माशाल्लाह से वक्त आ गया है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह से। तो आपकी मदर देख रही है ट्रांसमिशन, माशाल्लाह देख रही हैं, क्या देना चाहेंगे मैसेज उनको? ऑन ईयर बताएं कितना प्यार करते हैं आप उनसे। मैं तो यही कहूँगा कि पूरी दुनिया एक तरफ, मेरी माँ एक तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कह सकूँ। अभी जो नए नात ख़्वां बच्चे आ रहे हैं उनको भी कोई मैसेज आपकी तरफ से अगर आए? नए नात ख़्वां को मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि देखिए, मेहनत मेन चीज़ होती है किसी भी फील्ड में हो। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल की जो नस्ल है ना, वो सुनकर नात ख़्वां बन रहे हैं, यही कहना था। तो मेन चीज़ है इसमें मेहनत चाहिए, रियाज। जी 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 बिल्कुल। और इस पर माशाल्लाह से हम बहुत अच्छी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि तैयबा हमारे साथ हैं, हसन भाई हमारे साथ हैं, सारे माशाल्लाह से नात, यासिर भाई हमारे साथ हैं, तो सारे नात पढ़ने वाले हैं, तो क्या ही बात है अगर हम इस पर कुछ गुफ्तगू करें जी।
تو صدیق اسماعیل صاحب کے ساتھ میرا آنا جانا رہا ماشاءاللہ. تو کانفیڈنس بحال نہیں تھا میرا. جب پہلی ملاقات رہی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم پکے نعت کھاؤ. ماشاءاللہ. تو میں نے کہا نہیں حضرت. یہ کتنی پرانی بات ہے؟ یہ کم سے کم 20-22 سال پہلے کی بات ہے. بہت چھوٹے ہیں آپ کے پاس. لگتی نہیں ہے آپ کی اتنی عمر ہے. چلے نہیں لگتی ہے پونیئر نہیں بتائے نا, چلنے دیں کیا کچھ رہنے بھی دیں جی کچھ باتیں رہنے بھی دیں. جی بسم اللہ. انہوں نے کہا کہ نہیں تم پکے نعت کھاؤ. جی. تو میں نے کہا کہ نہیں حضرت مجھے نعت نہیں پڑھنی آتی. صحیح. اچھا ایک نعت سناؤ. صحیح. تو بچپنا تھا. بالکل ماشاءاللہ. اب اس کو بیوقوفی کہیں یا کمکلی کہیں. جی بالکل. انہوں نے کہا مجھے نعت سناؤ. صحیح. میں نے آنکھ بند کی اور بالکل ڈیٹو ان کی ہی انداز میں نے اللہ اور وہ کلام تھا لب کشادہی ہوں. اس شعر تک میں پہنچا. انہوں نے کہا بند کر دو. اچھا بند کر دو. اور میں کنفیوز ہو گیا. میں دوسری نعت سناؤ. اب جو دوسری نعت سنائی تو اس میں میری آواز چینج تھی, چینج ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو نعت خواں تو پکا ہے. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی اگر ابھی میں ہٹ جاتا ہوں تو پھر آگے موقع نہیں مل پائے گا. بالکل. تو میں ان کے جی حضوری میں لگا رہا. اور بڑی شفقت رہی ان کی میرے اوپر. اور پھر محفلوں میں لے کے جانا, لے کر آنا. پھر ایسا ہوا کہ پہلی بار جب انہوں نے اسٹوڈیو پہ آئے تو کانفیڈنس تھا نہیں. اچھا. وہ 5 سے 6 کیمرے جب لگے ہیں تو یہاں پسینہ, یہاں پسینہ, یہاں پسینہ. اسٹوڈیو تھا کہاں پہ تھا کیا؟ وہ گزری کا کوئی اسٹوڈیو تھا غالباً. صحیح ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھے چیک کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے پڑھوایا. اپنی 10 نعتیں ریکارڈ کروائی. انہوں نے پھر پروڈیوسر صاحب سے کہا کہ بھائی ان کی بھی 2-3 کلام آپ ریکارڈ کر لیں. صحیح. اور میں تو آپ سے باہر ہو گیا کہ میں یہ کیا ہو گیا اچانک. صحیح. 5 سے 6 کیمرے ایک ساتھ اور پھر اچانک وہ پسینہ یہاں سے آنے شروع ہو گئے. 2 بار تو پفنگ کی گئی میری. اچھا. جی. اس کے بعد پھر وہ پڑھوائے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی سامنے وہ بیٹھ گیا, مجھے سامنے بیٹھا کہ بھائی پڑھو. اب ظاہر بات ہے میرے آئیڈیل شخص ان کے سامنے پڑھنا ڈیفینیٹلی میرے لیے اعزاز کی بات تھی. پھر وہ ایجیٹیشن تھی. ہاں گھبراہٹ. اب وہ میں نے اسٹارٹ لیا ایک اسکیل پہ. انہوں نے کہا نہیں اسکیل پہ مزہ نہیں آ رہا, آپ اس سے بھی اوپر اسکیل پہ آئیے. اچھا. صحیح. سیکنڈ اسکیل پہ پہنچا تو نے کہا نہیں اس اسکیل پہ نہیں, اس سے بھی اوپر جائیے. اوہو. تھرڈ اسکیل پہ جب پہنچا تو میری آواز بلاسٹ ہو چکی تھی. صحیح. بالکل. میں بڑا افسردہ رہا. گاڑی میں بیٹھا ان کے ساتھ آ گیا, بڑا نروس تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا ہوا, بہت زیادہ پریشان ہو. تو ان کا انداز اس طرح تھا. میں بڑا سر جھکا کے نیچے بیٹھا رہا. میں نے کہا آپ نے کہا کہ آپ پکے نعت کھاؤ, آپ نے کہا تھا کہ تم پکے نعت کھاؤ, آپ نے دیکھا کہ میں تو پڑھ نہیں سکا. تو انہوں نے پھر بھی کہا کہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں تو پکے نعت کھاؤ. صحیح. ماشاءاللہ. میں نے کہا آپ نے خود دیکھا کہ آپ کے سامنے میری کیسے انٹروڈیوسنگ ہوئی. بولے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں تم پکے نعت کھاؤ, تمہارے اندر صرف اور صرف کانفیڈنس کی کمی ہے. صحیح. بالکل. تو میں نے کہا کہ بھائی وہ کس طرح بحال ہوگا, وہ کر کے ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ محفل میں آنا جانا کرتے رہیں گے, پبلک کی مومنٹ آپ دیکھیں گے. بالکل یوزڈ ہو جائیں. جی. تو اس طرح پھر آتے جاتے ان کے ساتھ پھر یہ کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہو گیا. اور اللہ پاک کا کرم ہے کہ مختلف چینلز وغیرہ میں مختلف ممالک میں ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اور اس خوبصورت گفتگو کے ساتھ ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کیوں نہ ایک خوبصورت آواز شامل کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. کون سی نعت آپ سنائیں گے پھر ہمیں؟ ابھی رمضان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کافی سارے مدینے کی طرف رواں دواں ہیں. بالکل. تو میری والدہ نے کہا تھا بیٹا اب دوسرا ٹرانسمیشن آپ نے یہ نعت پڑھنی ہے. کیا بات ہے. اور پہلے حمد اور اب نعت. والدہ کی فرمائش ہے تو پھر کچھ ہوئی نہیں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے. بالکل. اور میری پوری تیاری ہے, بس دعا کریں میرے حق میں کہ اللہ پاک مجھے اسی رمضان مدینے پاک کی عبادت حاصل کرے. آمین ثم آمین. کلام پیش کریں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. اور آپ کی والدہ کی دعا کے ساتھ ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن کو جو جتنی بھی مائیں دیکھ رہی ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ ان کی دل کی مراد پوری ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی مہینے میں مدینہ پاک کی زیارت کرائے. آمین ثم آمین. ناظرین, اور اس خوبصورت رحمت و برکت و بری محفل چلتی رہے گی انشاءاللہ. ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اب ہماری ٹرانسمیشن میں وہ 2 مہمان ہیں جو وہ 2 ہماری ٹرانسمیشن کی
रौनक है जिनका आप सबको इंतज़ार होता है और आपके साथ साथ हमें भी इंतज़ार होता है। जी ये तैमूर हमारे साथ हम सब के बहुत पसंदीदा बहुत ख़ास हमारे भाई सैयद ताहिर रहीम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग के ऑनर हैं, हेड हैं, माशाल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए खैर से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ग्रे कलर में क्या आप माशाल्लाह सूट कर रहे हैं आज? बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। और रोज़े रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और नूर भी आ रहा है आपके चेहरे पे माशाल्लाह। नूर तो शुरू का है। अच्छा सही सही सही, चले माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी नज़र का शुक्रिया, जज़ाक आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और हमारे साथ होम्योपैथिक से डॉक्टर सनाउल्लाह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब के लिए क्या कहेंगे? नहीं, हम ताहिर भाई से पूछते हैं ना, डॉक्टर साहब के लिए आज क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब माशाल्लाह हमेशा स्मार्ट थे, स्मार्ट है और माशाल्लाह स्मार्ट रहेंगे। और एक तो देखिए, एक तो है डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, सबसे बड़े जो चीज़ें हम लोग के पास बाद में पहुंचती हैं वो भाई के पास पहले पहुंच चुकी होती हैं, पहुंच चुकी, इस्तेमाल भी हो चुकी होती हैं। बिल्कुल माशाल्लाह स्मार्ट इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनको हंसता मुस्कुराता रखे। अच्छा, इसमें मुझे लगता है एक पार्ट और भी डॉक्टर साहब, वो बताइए ना कि जो आपकी जो लुक आफ्टर जो आपकी चीज़ें होती हैं, आपके कपड़े होते हैं, आपका वॉर्डरोब होता है, कौन टेक केयर करता है, कौन ख्याल करता है? माशाल्लाह से बेहतरीन क्वेश्चन आपने पूछ भी लिया है। अच्छा, लेकिन आपके ऊपर परेशान क्यों इतने हो गए घर पे? मसला सबसे बड़ा ये है ना कि मैं पहले तो खैर मदर लुक आफ्टर करती डेफिनेटली, और जब से माशाल्लाह से शादी हुई है तो फिर मिसेस अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट सारा जो है वो मिसेस को जाता है, और सारी चूजिंग इवन के हर चीज़ की वो माशाल्लाह। लेकिन अस्सलाम वालेकुम आपको भाभी बहुत बहुत, और बहुत अच्छी आपकी चॉइस है, और बहुत अच्छी वॉर्डरोब पहनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, और उससे ज़्यादा ये अच्छे इंसान है डॉक्टर साहब। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनको भी आपने अच्छा करना है, तो थोड़े से काम पर आते हैं। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि कल जो हमारा सेगमेंट था वो था हमारा स्टमक का। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा अभी हम थोड़ी सी बात स्टमक पे करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर ट्रांसमिशन में ब्रेक के बाद सवाल ऐड करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम स्टमक के हवाले से बात कर रहे थे, तो पहली चीज़ तो हम ये समझ लें कि स्टमक हमारा मतलब है क्या। बिल्कुल। इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 12 इंच होती है। 12 इंच सही। जी। इसकी विड्थ जो होती है वो तकरीबन 6 इंच होती है। 6 इंच। इसकी कैपेसिटी नॉर्मली जो होती है तकरीबन 1 लीटर की होती है, यानी ये अपने अंदर ग़िज़ाइयत 1 लीटर तक की रखता है। सही। लेकिन अगर हम कंटिन्यू इसको यूज़ करते रहें, खाते रहें, तो ये 3 से 4 लीटर तक बढ़ा सकता है अपनी। सही। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है। सही। अब आ जाती है डाइट के हवाले से, तो उसकी 2 वजूहात हैं। जब हम खाना इस्तेमाल करते हैं तो उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो खाना किस तरीके से खाया गया, सही, आया खाना ख़राब तो नहीं था, बिल्कुल, ये 2 वजूहात हैं। सही। ठीक। इसमें खाना जो है, अगर हम घर में एग्जाम्पल लें कि 6 से 8 अफराद ने खाना खाया है, तो 8 अफराद ने अगर खाना खाया है तो 8 के 8 का अगर स्टमक डिस्टर्ब हुआ तो इसका मतलब है खाना खराब है। बिल्कुल सही। ठीक। और अगर किसी एक फर्द का हुआ तो इसका मतलब है खाने का मसला नहीं है, उनके स्टमक की डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है। सही, बिल्कुल। अब रूटीन वर्क में अगर आ जाए तो खाना खाया किस तरीके से गया, बिल्कुल रूटीन से हटकर खाया गया है, बहुत जल्दी खाया गया है, सही, बहुत स्लो करके खाया गया, बिल्कुल, या ऐसी चीज़ें ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल की गई हैं कि जो स्टमक को टाइम ले रही हैं। अच्छा। डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट करने को, ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने के लिए जो है ना वो काफ़ी टाइम ले रही हैं। बिल्कुल सही। तो उससे फिर हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। सही सही, जज़ाकल्लाह। तीसरी चीज़ इसमें एक चीज़ हम ऐड कर लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के ज़रिए हमें ये बताया गया कि 1/3 का फार्मूला इस्तेमाल रखें। सही। 1/3 का मतलब ये है कि 3 हिस्से खाएं, 1 हिस्सा खाली रखें। माशाल्लाह। इसी तरीके से पानी का है, बिल्कुल। 3 हिस्से। अगर आप इजाज़त दें तो हम ये पानी की जो चीज़ है वो जो आप बताना चाह रहे हैं हम ब्रेक के बाद ऐड कर लें। बिल्कुल। जी नाज़रीन, जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और ब्रेक से पहले हमारा जो सेगमेंट था, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस रमज़ानुल मुबारक में हमने आपकी हेल्थ की बहुत केयर करनी है, और हेल्थ की केयर करने के लिए हमारे साथ होते हैं डॉक्टर सनाउल्लाह। और ब्रेक से पहले वो कुछ बता रहे थे कि उनसे मैंने माजरत की, और हम क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना पड़ा, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी
इस्तेमाल करें। 1/3 फार्मूले में क्या है कि 3 हिस्से खाना खाएं, 1 हिस्से अपने पेट को खाली रखें। सही। इसी तरीके से 3 हिस्से पानी पिएं, 1 हिस्सा खाली रखें। सही। खाना अक्सर हम फल खाते हैं जी रूटीन में, तो अक्सर बेशतर मोस्ट ऑफ देम आपने ये देखा होगा कि हमारे यहाँ ये अलमिया है कि खाना खाने के बाद फल खाया जाता है। सही। बल्कि खाने से तकरीबन आधे से 1 घंटे पहले स्टार्टर के तौर पर अगर फल को यूज़ किया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा। बहुत बेहतर होता है। सही। उससे ये होता है कि हमारा स्टमक जो है वो बहुत ज़्यादा बर्न नहीं करता, बेहतरी आती है उसमें। सही। तीसरी चीज़, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ जिनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ाओं में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोशिश ये करें कि कद्दू शरीफ, अच्छा, जैतून, सही, सिरका, सही, सेब, शहद, खजूर, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा रखा जाए। बिल्कुल सही। इनको इस्तेमाल रखने से ये है कि हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, हमें एनर्जी मिलेगी और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेहतर करती हैं और साथ साथ ये भी बता स्ट्रॉन्ग दें करती हैं और जल्दी हजम हो जाती हैं। बिल्कुल। और ये जिन चीज़ों का आपने नाम लिया, इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए? अपनी ग़िज़ा में शामिल में रखें। अच्छा। ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल में रखें। जैसे भी रमज़ान शरीफ चल रहे हैं तो 2 सहरी में खजूर खा लें आप। सही। 2 अफ्तार में खा लें खजूर के बाद। हमने इसी मुतालिक बात की थी कि बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना रखें, वही 1/3 फार्मूले के ऊपर आ जाए। अच्छा, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं रखें? नहीं, इस्तेमाल मतलब उस दौरान ना करें। स्टमक आपका खाली है, कुछ तो आप उसमें सॉलिड डालें ना। लिक्विड अगर डालेंगे तो लिक्विड ही बच जाएगा। सही। उसको आपने सॉलिड में थोड़ा सा इस्तेमाल करना है कि खजूर ली, थोड़ी सी चाट खाई, 1 से 2 पकोड़े खा लिए, थोड़ा सा पानी ले लिया। सादा पानी इस्तेमाल करें। सही। ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, ठंडे मशरूबात इस्तेमाल ना करें। हाँ, मशरूबात में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो फलों के रस जो है वो ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए, उनको इस्तेमाल में रखें। और सीजनल फल खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, सीजनल फल का जूस पिए वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। सही। एक सवाल मैं पूछूं डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब, जैसे हम नातख़्वां हज़रात हैं, हमें गले का मसला आए दिन लाहिक रहता है, तो इसके बारे में बताइए कोई ऐसा कहवा जो जितने भी नातख़्वां हमारे हज़रात सुन रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो जाए, मुझे भी, क्योंकि मैं तकरीबन 3 महीने से खांस रही हूँ। देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया आपने। उसमें 2 चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखें। नातख़्वां हज़रात हुए या जितने उलमा हज़रात हैं या कारी हज़रात हैं जिनका मतलब बोलना है, इवन के इंक्लूड विद मी, मैं अपनी बात करूं, क्यों हमने बोलना है, सही, डिस्कस करना है, तो उसमें कोशिश ये करें कि एक तो ऑयली चीज़ें इस्तेमाल ना करें। अच्छा। सही। सबसे पहली चीज़ ऑयल चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दूसरे नंबर पे अगर ऑयल की चीज़ें इस्तेमाल में आ जाती हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी महफिल में वहाँ आपको मैसर नहीं है उसके अलावा, तो कम खाएं, मना नहीं है, लेकिन उसके साथ कहवे का इस्तेमाल कर लें। जैसे ग्रीन टी है या नहीं है अवेल, आप नॉर्मली अपने पास खोपरा रख लें, कोकोनट का पीस इस्तेमाल कर सकती हैं, कावा इस्तेमाल कर सकती हैं, ग्रीन टी है, नॉर्मली चाय की पत्ती का जो कावा होता है वो यूज़ कर सकते हैं। कथा कलामी के लिए माजरत, खोपरा भी खांसी में कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। वो देखें ऑयल उसको रेशा बनाता है। नहीं, रेशा तो बनाता है, जस्ट आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं लेना, थोड़ा सा लेना है, गिरी लेनी है, ऐसा वो खोपरा नहीं लेना। ठीक है। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। और ये तो हमारा था आज का टॉपिक, स्टमक पे हमने बात की, और साथ साथ हम इसमें नाज़रीन सवाल भी ऐड करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, सवाल मैं अभी पूछूंगा आपसे, इंशाल्लाह हम जवाब इसका ऐड करेंगे बाद में, और हम जाएंगे ताहिर भाई के साथ। सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, स्टमक की अगर हमारी बात हो रही है तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे नाज़रीन जो हैं वो उठते ही उन्हें चाय पीनी होती है, और दूसरा ये है कि बहुत सारे नाज़रीन ये कहते हैं कि चाय के बगैर हमारी सुबह नहीं होती। तो क्या निहार मुँह चाय पीना ठीक है, या कुछ खा के, जैसे आपने कहा है कि कुछ फ्रूट्स खा के या कुछ भी XYZ खा के करना ज़रूरी? तो उसके जवाब पे इंशाल्लाह हम बाद में आएंगे इंशाल्लाह। जी जी ताहिर भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपसे हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू रहती है और नाज़रीन उसको पसंद करते हैं। हमने फाइल डुप्लीकेशन पे गुफ्तगू की, बहुत से राशि गुफ्तगू, चाइना कटिंग पे हमने बहुत खुल के बात की, हमने प्रॉपर्टी के मामलात पर, लेन देन के मामलात पर, ब्रोकर्स पर, सब बात। आज मैं एक ऐसे सवाल की जानिब जाऊंगा जो आप खुद भी, आपने शायद माशरे में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा। एक तबका हमारे माशरे में ऐसा होता है जो प्रॉपर्टी ख़रीदने को पसंद नहीं कर, हालांकि पैसे हैं उसके पास, वो कहता है कि मेरे पास 2 करोड़ रुपए है, बजाय में प्रॉपर्टी खरीदने के मैं इसको इन्वेस्ट कर दूं शेयर मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर या दूसरी जगहों पे, और वो किराए के मकान पे रहने को तरजीह देते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि एज अ इन्वेस्टर हम प्रॉपर्टी ना खरीद कर अगर शेयर मार्केट में की तरफ बढ़ें और गोल्ड की तरफ बढ़ें तो ये ठीक है, मुनासिब है ये चीज़? बहुत शुक्रिया तैमूर। देखिए, गोल्ड मार्केट तो फिर भी आपकी स्टेबल रहती है, अगर कहीं पर अगर वो डाउन करती भी है अगर,
تو وہ اتنی زیادہ وہ نہیں کرتی کہ ہاں جس میں آپ کو کوئی بہت بڑا لاس ہوتا ہے اس کے اندر گولڈ مارکیٹ کے حوالے سے. ہاں اگر ہم بات کرتے ہیں شیئرز کی تو شیئرز مارکیٹ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے جو موجودہ حالات ہیں اس وقت ابھی, تو شیئر مارکیٹ اسٹیبل نہیں ہے. تو اگر کوئی فرض کر رہے ہیں اگر آپ 2 کروڑ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں تو لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جی آپ پراپرٹی میں کر دیجیے انویسٹمنٹ آپ کے لیے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی اس کو اگر آپ اس اماؤنٹ کو کہیں اور آپ یوز نہیں کر سکتے کسی ادر بزنس کے اندر, تو آپ اس کو ایک رینٹل ویلیو کی طرف آپ بات کیجئے, اس پراپرٹی کو آپ پرچیز کیجئے. پراپرٹی کے دیکھیں اس کی اپریسیشن ہے, آپ پراپرٹی ایسی اٹھائیے جس کی اپریسیشن ہو. آپ کو 2 بینیفٹ ہیں. جو 2 کروڑ کی پراپرٹی آپ پرچیز کرتے ہیں آج سے 5 سال کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ 2.5 کروڑ میں پہنچ چکی ہوتی ہے وہ. اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے. صحیح, مطلب میں کسی اور بیس پہ بات نہیں کر رہا, یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. وہ 5 سال بعد نا, ہم تو شارٹ ٹرم انکم پہ بھی تھوڑی سی بات. دیکھیں شارٹ ٹرم پہ میں آتا ہوں. دیکھیں شارٹ ٹرم پہ اس طرح سے ہوگا کہ شارٹ ٹرم انکم کی اگر آپ بات کرتے ہیں, آپ 2 کروڑ کی جو بھی پراپرٹی اگر آپ پرچیز کرتے ہیں, آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا کیبور کیا ہے. صحیح, آپ کیبور کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں جو کہ میرے حساب سے ایک جائز کام نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں لیکن اس کو میں جائز نہیں سمجھتا. صحیح, آپ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کیجئے 2 کروڑ کی پراپرٹی کے مینز آپ کو کم از کم 50,000 کا تو آپ کو رینٹ آئے گا اس کا. ٹھیک ہے, 5 سال کا آپ اس کی ویلیوشن آپ نکال لیجئے. صحیح ہے, 5 سال میں تقریباً آئی تھنک 30 لاکھ ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی اس کی اپریسیشن ویلیو, اپریسیشن اگر ہم 15 20 25 بھی اگر منیمم سائڈ پہ اگر ہم رکھ لیتے ہیں اس کی. صحیح ہے. صحیح, آپ 5 سال کے بعد آپ جب اس کو بیچنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی اپریسیشن اب آپ کے پاس ہوگی 15 20 25 50 جو آتی ہے اب آپ کے پاس, جو آتی ہے, جو ایکسپیرینس ہم کر چکے ہیں اس وقت. کر چکے ہیں, بالکل ٹھیک. صحیح, تو آپ کو 2 چیزیں, آپ کی ایک منتھلی انکم آپ کی اسٹارٹ ہو چکی ہے, جائز ناجائز نہیں ہے. صحیح, وہ جائز ہے اب آپ کی, اور آپ کی پراپرٹی کی ویلیو اب آپ کی انکریز کر رہی ہے. صحیح, لیکن پراپرٹی لیتے وقت میں اگین کہوں گا اپنے ناظرین کو کہ پراپرٹی لیتے وقت اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن کو لازمی چیک کیجئے. صحیح, کسی کے بھی کہنے کے اندر پراپرٹی میں اپنے پیسے ایسے مت پھینکیے گا. پراپرٹی پرچیز کیجئے, پراپر اس کی ڈاکومنٹیشن کروائیے, اور کوشش کریں کہ کسی اسٹیٹ ایجنٹ, ریلائبل اسٹیٹ ایجنٹ کو اپنے ساتھ انگیج کیجئے. صحیح, کیونکہ بہت سے ڈاکومنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی آپ کو خبر نہیں ہوتی ہے, اور اگر آپ لوگ ڈائریکٹ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ لوگ لاس کر جاتے ہیں. دیکھیں اسٹیٹ ایجنٹ آپ سے جسٹ ایک کمیشن تو آپ کو چارج کرے گا, لیکن بہت سی چیزیں آپ کی سیو کر کے نکال دیتا ہے آپ کو. پھر وہ اپنی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی پھر. اور ایسا نہیں کہ اگر میں نے کوئی چیز آج آپ کو میں نے اگر سیل کر دی ہے تو کل میں اس کو اون نہیں کروں گا. اچھا, اگر کل کو خدا نہ خواستہ اگر ڈاکومنٹس میں مسئلہ آتا ہے میں آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں. لیکن ہم پھر بھی اچھا, لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں ہم اس کام میں ہم لائر اٹیچ کرتے ہیں اپنے ساتھ. ہم پراپر ایک ڈاکومنٹیشن کو پراپر چیک کرواتے ہیں, پروفیشنل وے سے ہم اپنا سارا کام کرتے ہیں. یہ نہیں کہ میں اپنے اوپر بھی وہ نہیں کرتا. صحیح, میں کہتا ہوں جو میں پراپر ایک لائر ہائر کروں گا اس کام کے لیے, وہ لائر بھی مجھ سے پیسے لے گا. اگر میں 2 کروڑ کی اگر میں پراپرٹی اگر پرچیز کروں گا تو مجھے 50,000 لائر کو اپنے دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل ہے. اور میں تو لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی آمدنی کو حلال کیجئے, پیسے کو ایسی جگہ پر انویسٹ کیجئے جہاں پر اگر آپ اس کو کل بیچنا بھی چاہتے ہیں تو ایک اپریسیشن کے ساتھ وہ چیز ہو سکے آپ کی. صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا, ہم یہاں پر ڈاکومنٹیشن کے اوپر بات کر رہے تھے تو ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا. ہم کچھ پراپرٹی ایسی خریدتے ہیں جو کسی کی وصیت کوئی باپ اپنے پیچھے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے, تو اس پراپرٹی کے جو دعوے دار ہیں, مان لے کہ وہ 7 بھائی 2 بہن اس کے دعوے دار ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نے پراپرٹی خرید لی, ایک بھائی کھڑا ہو گیا اور اس نے مجھے پراپرٹی بیچ لی, کل کو دوسرا بھائی کھڑے ہو کے کلیم کر گیا کہ یہ اس پہ تو میرا بھی حصہ تھا, میرا بھی حصہ تھا. ایسی صورت میں پھر دیکھیں ہم کوئی پراپرٹی ایسی اگر ہم کوئی پرچیز کرتے ہیں, فرض کر لیجیے میرے نام ایک پراپرٹی, میں اپنی ہی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. اگر ایک پراپرٹی میرے نام ہے, خدا نخواستہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے, صحیح ہے, تو بچے میرے یا بیوی میری اس کو ویسے نہیں بیچ سکتے انٹل لیس. صحیح ہے, اس کی ایک ہیئرشپ بنے گی پھر. صحیح, ٹھیک ہے, اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن ہوگی, اس میں کوئی ایک اتھرائز ہوگا پھر. اچھا, ٹھیک, وہ سارے بچے مل کے اس کو اتھرائز کریں گے. اچھا, ٹھیک ہے, صحیح, اگر وہ پراپرٹی میرے نام کی ہے تو. صحیح. اسی طرح سے بہن بھائیوں کا جہاں تک ابھی آپ نے سوال کیا, تو بہن بھائیوں کا بھی جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار بالکل یہی ہوتا ہے کہ ہاں جی بہن بھائی سارے کے سارے کسی ایک کو اتھرائز کرتے ہیں, ایک ہیئرشپ بنتی ہے. اچھا, جو رجسٹرڈ ہوتی ہے ہیئرشپ آپ کی. صحیح, اور اس کے بعد وہ چیز آپ کی جو اس کا اتھرائز پرسن ہوتا ہے اس کو پوری اتھارٹی ہوتی ہے اس چیز کو سیل کرنے کی. اس کے بغیر پھر آپ نہیں کر سکتے اس کی ٹرانزیکشن. کل کو دوسرا بھائی کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھ سے جبرن یہ سائن نہیں, جبرن نہیں ہوگا نا. دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ اس نے سائن کیا ہوا ہے, اس نے ہیئرشپ کو سائن کیا ہے. جب اس نے ڈاکومنٹیشن سائن کر دی, وہ ڈاکومنٹیشن جو رجسٹرڈ ہو چکی ہے, اب کلیم اب آپ کا ختم ہو چکا. یعنی کہ آپ دیکھیں جب آپ ہیئرشپ کو جب آپ سائن کر رہے ہیں نا, 7 بہنوں میں سے 7 بہن بھائیوں میں سے اگر آپ کسی کو اتھرائز اگر آپ کر رہے ہیں,
इट्स मीन कि आपने तमाम चीजों को सोच समझ करके बाहिमी मशावरत के साथ अब आपने अपना काम किया, सो तभी ठीक हो तो कोई भी क्लेम के लिए फिर नहीं आएगा वापस। चलें जी, जज़ाकल्लाह। और बहुत डिटेल में हमेशा आप चीज़ें समझाते हैं और आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन को वो चीज़ें समझ में आती हैं। और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि माशाल्लाह से आप ट्रांसमिशन में आए हमारे और अपनी आवाज़ से इसको महका दिया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। और ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए अभी हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना होगा और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़ और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी तैमूर भाई, हम इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे ताहिर भाई के साथ। बिल्कुल, और माशाल्लाह से इतनी डिटेल में आप चीज़ें बताते हैं, मैं तो कोशिश करता हूँ कि कुछ सीख लूँ उसमें से। बहुत शुक्रिया, कॉम्प्लीमेंट है, शायद मेरे लिए भी ये हो कि मेरे पास मैसेजेस आए कि आपका जो शो है वो एक फैमिली माहौल आप इस तरह से लेके चलते हैं कि एक फैमिली की तरह आप शो को लेके चलते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह से, मेरे ख्याल से अच्छा कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए। बिल्कुल माशाल्लाह से। और देखिए नाज़रीन, होना ही ये चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा आपको इंट्रो में भी बताता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग हमारी ट्रांसमिशन का इंतज़ार करते हैं, आप यकीन करें उसी तरह से जैसे रोज़ा खुलता है हमारी कोशिश होती है कि हम रेडी हों और भागें सेट पर आपके सामने हाजिर हैं। और ये जितने मेहमान बैठे हैं ये सब हमारी फैमिली मेम्बर हैं। बिल्कुल। और एक और हमारे पास 2 बच्चे आते हैं डफ वाले, अबू बकर मक्की और दाऊद मक्की। वो तो चमकते सितारे हैं ना माशाल्लाह। माशाल्लाह इतनी बढ़ गई है कि अब डिमांड आने लगी है कि भाई अबू बकर किसी दिन अगर नजर ना आए तो अबू बकर कहाँ है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी वो माशाल्लाह से अंदर इंटर हो रहे थे तो मैंने देखा बाकायदा उनके हाथ में एक डायरी है आज। क्योंकि उस पर उनकी जितनी भी फरमाइश होती हैं वो सब उन्होंने नोट की हुई होती हैं। और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैं फिर से यही कहूँगा कि ये जो सारी मेहनत है इसके पीछे एक बनो यूथ की आवाज़ का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी बहुत बड़ी मेहनत है उनकी। और वो कोशिश करते हैं कि इसी तरह से चमकते सितारे आपके सामने लेके आएँ और मज़ीद चमके। और अभी हम ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे चमकाते हैं। हमारे साथ एक नए मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। मैं तारुफ करवाऊंगा, हमारे साथ एक और कराची के खूबसूरत नातखाने में ज्वाइन किया मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी साहब। आप इनको भी मुख्तलिफ टीवी चैनल पर देखते रहते हैं और सोशल मीडिया के जरिए आप इनको फॉलो करते हैं। बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने माशाल्लाह ट्रांसमिशन सजाई। अल्लाह ताला आपकी काविश कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। आपकी आवाज़ जितनी खूबसूरत है आप भी उतनी खूबसूरत। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल। और हम चलते हैं अपने नन्हे सितारों की तरफ और उनसे अबू बकर कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दिन ब दिन मैं देख रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका माशाल्लाह बहुत बुलंद जा रहा है। घर वाले देखते हैं ट्रांसमिशन? जी अभी भी घर वाले देख रहे हैं मेरे। अम्मी का कैसा रिस्पांस है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। अच्छा, फिर फैमिली मेंबर में भी फिर आप बड़े फेमस हो गए होंगे कि भाई अबू बकर। जी बिल्कुल। फैमिली में तो वो टाइम ही नहीं दे रहे हमारे पास जाए। चले जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। चले जी अबू बकर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारा प्यार आपके लिए। और मेरी ये दुआ है कि हर घर में आप जैसे बच्चे हों। और जिस माशाल्लाह बिलाल ये पढ़ते हैं बड़े-बड़े नातख़्वान। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस खूबसूरत से माहौल के साथ साथ हमें जाना पड़ेगा नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक पे। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और ब्रेक से पहले हमारी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी ताहिर भाई के साथ। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। बहुत शुक्रिया जी जी ताहिर भाई, हमारी गुफ्तगू चल रही थी वो तो हो गया। आज का हमारा टॉपिक जो था वो दुआ के ऊपर था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी जर्नी हमने पहले भी डिस्कस की है, आपकी जर्नी में आपकी वालदा का और वालिद की दुआओं का कितना असर है? तैमूर कह लीजिए माँ बाप की दुआओं का ही नतीजा है कि आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और यकीन जानिए कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि जब मैं काम पर जा रहा हूँ, घर से मैं निकल रहा हूँ और वालदा गेट तक मुझे छोड़ने ना आती। जब तक कि उनकी सेहत रही, जब तक इवन की जब उनकी तबीयत ख़राब थी तब भी उनकी कोशिश होती थी कि किसी तरह से भी गेट तक मुझे छोड़ने के लिए आ जाएं वो, और दुआ करती रहती थी जब तक मैं
अपनी गली में क्रॉस ना कर लूँ मैं। वालदा के साथ कोई ऐसा इमोशनल मूवमेंट आप अगर हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहें? वालदा के साथ बहुत जो एक लास्ट स्टेज जब थी वालदा की, जिस दिन मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा था मैं, बस अम्मी की बस एक ही था, मुझे हुआ क्या है और मैं सही हो जाऊंगी। मैंने कहा हाँ अम्मी इंशाल्लाह भी आप सही हो जाएंगे, आप चलिए हॉस्पिटल। और उसके बाद जब उनका मैंने हॉस्पिटल लेकर गया हूँ मैं उनको, वहाँ पर मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट उनका करवाया अम्मी का, तो वो थोड़ा सा कुछ इजी फील उनको हुआ था उस टाइम के अंदर जब उनका ट्रीटमेंट मैंने करवाया। उनको जब मैंने रूम में शिफ्ट किया अम्मी को, रूम में शिफ्ट करने के बाद जाहिर सी बात है बहुत सारे मेहमान आना शुरू हो गए थे फिर अम्मी को देखने के लिए। तो सडनली बस मैं कुछ गेस्ट आए हुए थे उनसे, उनको मैं गया वहाँ उसमें लॉन्ज में मिलने के लिए जी। बस मुझे तला मिलती है कि हाँ जी इंतकाल हो गया। शायद मैं बहुत ज़्यादा शायद कोई 25-30 सेकंड के लिए शायद वहाँ से आउट हूँ खाली। उसी लम्हों बस वो समझे कि आखिरी लम्हा था जो मैं बस अपनी माँ के साथ में नहीं था, वरना आखिरी दिनों में समझे कि मैं सोता भी अम्मी के साथ ही था। पापा का इंतकाल मैंने जैसे पहले बताया था 2006 में पापा का इंतकाल हुआ था। तो पापा के इंतकाल के बाद 3 साल तक मैं अम्मी के कमरे में सोता रहा, अम्मी के साथ ही मैं सोता रहा और आखिरी वक्त भी समझे कि मैं अम्मी के साथ ही रहा हूँ। शायद बहुत मुश्किल मेरी नींद भी आप ये समझे घंटे 2 घंटे शायद मैं सोता था 24 घंटे में। मैं पूरी रात अम्मी के साथ सिर्फ जागता था क्योंकि अम्मी को इशू हो गया था, लंग्स का कुछ इशू था। तो पूरी रात अम्मी के साथ मैं जागता रहता था ताकि उनको ज़रा सी वो खांसती थी मैं बस अम्मी को अपनी गोद में लेके बैठ जाता था। क्या खिदमत की आपने। बस ये उनकी दुआओं का नतीजा है तैमूर, ये उनकी हाँ ये माँ बाप की दुआओं का ही नतीजा है। बिल्कुल सारी जिंदगी बस उनकी जो कहा वो सुना, वो माना, सही, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। और मैं हमारे नौजवानों को ये कहूँगा ये जरूर सुने ये चीज कि माँ बाप की जितनी कदर कर सकते हैं कदर कर लीजिए। आज हैं कल नहीं होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक। जितना उनकी खिदमत कर सकते हैं उनकी खिदमत कर लीजिए। आज आपके साथ हैं कल वो नहीं होंगे। अल्लाह पाक आपके वालिदैन को अपनी जवाने रहमत में जगह दे। आमीन आमीन सुमा आमीन सुमा आमीन। और ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हम चलते हैं नन्हे सितारों की तरफ। अबू बकर और दाऊद साहब, आप एक और नात के लिए फिर तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार। बस बिस्मिल्लाह करें। माशाल्लाह। और नाज़रीन हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और हमें साथ साथ एक हमारे नए मेहमान ने ज्वाइन किया माशाल्लाह से। उनका एक बहुत खूबसूरत सेगमेंट हमारे साथ होता है और वो रोज़ ट्रांसमिशन में हमारे साथ होते हैं। हमारे साथ हैं अरसलान अत्तारी, मजहबी स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खुशामदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। जज़ाकल्लाह खैरा। माशाल्लाह। और फिर इंशाल्लाह अपने आज का जो हमारा मौजू है उसको भी आपके साथ भी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। जी अभी ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने नातख़्वां की तरफ। हम बिलाल कादरी से गुजारिश करेंगे कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। और नाज़रीन जाते हैं इस टाइम हम एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और ब्रेक से पहले नाज़रीन हमने मिलवाया था आपको अरसलान अत्तारी, मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। और माशाल्लाह से आपकी जब जब आमद होती है दिल को बहुत अच्छा लगता है। हमारी ट्रांसमिशन को आप माशाल्लाह सजा देते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा तैमूर भाई कि आज के मौजू पर बात की जाए। अरसलान साहब, मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ कि हुस्न अखलाक किस तरह का, एक मोमिन का हुस्न अखलाक कैसा होना चाहिए। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ क्योंकि मैं अखलाक में सबसे बेहतर हूँ। बेशक। तो हमारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या गाइडेंस दी है कि हमारा रवैया माशरे में कैसा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया।
کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے تاکہ دینی لحاظ سے رہنمائی ملے اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں اور عملی میدان میں اس کو لے کر آئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مسلمان کا عمل کون سا افضل ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ اسلام میں عمل کون سا افضل ہے. یہاں فرما دیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمان کا عمل کون سا افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو. کتنی پیاری بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو. اب اچھے اخلاق میں کیا آ جائے گا؟ ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا انداز کیا ہے, جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہمارا انداز کیا ہے, حسن اخلاق کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن, دیکھیں اس میں تمام کیٹیگریز آ جائیں. ہم جن لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے ان کے ساتھ ہمارا انداز کس حساب سے ہے. دیکھیں کل بروزے قیامت اس میں حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نکل گئی جو تکلیف کا سبب ہے, کل بروزے قیامت ہمیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اور اگر ہم اسی چیز کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے تو کل ہمارے لیے نجات ہوگی. اور ایک حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ کو مومن کا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ کو مومن کا کون سا عمل افضل ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کا وہ عمل مجھے سب سے زیادہ افضل ہے جو مسلمان باعث اخلاق کے ساتھ پیش ہے. یعنی کہ مسلمان کے ساتھ ہمارے پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ مسکرا کر گفتگو کرنی چاہیے. مسکرانا تو صدقہ ہے. بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی مسلمان کے لیے مسکرا کر بات کرتا ہے تو اس کے لیے بھی نجات ہے. نجات کیا ہے؟ وہ جنت میں چلا جائے گا. تو ہم جب بھی کسی سے کوئی بھی بات کریں, ہمارا انداز ہو, کسی کو کوئی ہم سے کام ہو, تو ہم بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ پیش آئیں تاکہ وہ ہماری ایک تو دلی طور پر ہمارا جو رابطہ ہے وہ محبت بھی بڑھ جائے گی, رابطہ بھی مضبوط ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہترین عمل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حضور کی حدیث کے اوپر عمل ہو جائے گا. اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جس نے اس دور میں جس نے ایک میری سنت پر عمل کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یعنی کہ ہم نے ایک سنت کے اوپر اگر عمل کر لیا تو ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ہر دفعہ کی طرح آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی ہے, اور ان سب باتوں پہ ہمیں ناظرین عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور وہاں بہت خاموشی میں چاہ رہا تھا, وہاں چلتے ہیں. جی طیبہ کی طرح. طیبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. جی کوئی منقبت اگر ہو جائے تو ضرور. کیوں بسم اللہ. اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے, اور ہمیشہ کی طرح خوبصورت انداز میں آپ نے آج بھی ٹرانسمیشن میں وہی خوشبو دکھا دی. ناظرین, ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں ایک بار پھر سے ڈاکٹر ثناء اللہ کی جانب. اور آپ کو بریک سے پہلے جیسے کہ آپ کو پتا تھا آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا اسٹمک کے اوپر, اور کس طرح سے آپ رمضان المبارک پہ اپنے اسٹمک کو کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ آپ بیمار نہ ہوں, آپ کو کسی چیز کی پرابلم نہ ہو. وہ ڈاکٹر صاحب نے ڈسکس کی تھی, آئی ایم شیور آپ کو وہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی. اب آج کا ہم اس میں سوال ہم نے جو ایڈ کیا تھا بریک سے پہلے, ڈاکٹر صاحب میں نے سوال آپ سے کیا تھا, لیکن میں نے کہا تھا آنسر ہم انشاءاللہ بریک کے بعد لیں گے. تو وہ سوال میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی پرابلمس ہوتی ہیں کہ لائک وہ اٹھتے ہی نہار منہ چائے پیتے ہیں اور اس کے بعد پھر گھنٹوں گھنٹوں کچھ بھی نہیں کھاتے, پھر چلے جاتے ہیں دوپہر کے لنچ پہ. تو یہ چیز ٹھیک ہے؟ اور اگر نہیں ٹھیک تو ہمیں کس طریقے سے اس کو درست کرنی چاہیے تاکہ ان کی چائے بھی نہ جائے اور ان کی صحت بھی رہے؟ جی بلال بھائی بہت پیارا کوشچن کیا آپ نے, اور موسٹ آف دیم اکثر و بیشتر دیکھنے میں یہ ملا ہے, اکثر مریض آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب صبح ہم سے جو ہے نا وہ ناشتہ نہیں کیا جاتا. بالکل جی. تو ناشتہ نہیں کیا جاتا تو کیا کرتے ہیں کہ جی ہم ایک کپ چائے لیتے ہیں اور چائے پی کر جاب پر, یا اکثر ٹیچرز جیسی ہیں میری بہنیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ان کے اسٹمک پہ بہت شدید قسم کا پڑتا ہے, جس سے اس میں یہ سمجھ لیں کہ ایسیڈیٹی, ہارٹ برن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اس کا تیسرا سب سے بڑا نقصان یہ گا کہ آپ کے جو دانت ہیں یہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں, ویک ہو جاتے ہیں, گمس میں بادی پن ہو جاتا ہے,
ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, पायरिया हो जाता है, ये चाय के नुकसानात बता रहे हैं खाली पेट पे। बेहतर ये है कि आप उठें, उठने के बाद अगर कोई फल वगैरह लेना चाहते हैं, जैसे एप्पल वगैरह लेते हैं, तो वो इस्तेमाल में रखें। नहीं है, कुछ भी नहीं लेना, तो आप कम से कम आधा गिलास पानी ज़रूर पी लें। अच्छा, सही। पानी पीने के बाद थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कोशिश ये करें कि खाली चाय ना लें, कोई बिस्किट, केक रस वगैरह कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल वो लाजमी ज़रूर लें। सही, स्नैक्स ले लें जी, कुछ भी लेना चाहें वो आपके ऊपर है कि आपको कंफर्ट किस में है। क्योंकि बहुत सारे लोगों में अपने ट्रांसमिशन में ये बात जिक्र ज़रूर किया था कि खाने की रूटीन का थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। सही, बिल्कुल। तो रूटीन अगर आपकी बेहतर होगी तो सुबह उठकर आपको ऑलरेडी भूख लगेगी, भूख नहीं होगी, फास्टिंग नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सिट्रिक सोडा वगैरह जो लोग लेते हैं या गर्म पानी पीते हैं वो भी सही है, उसमें कोई गर्म पानी बेहतर है, सिट्रो सोडा वगैरह नहीं। सही, सिट्रो सोडा क्योंकि लामला जाहिर सी बात है सोडा है उसमें, तो वो फिर अच्छा कुछ लोगों में ऐसा होता है कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, हार्ट बर्न होता है, तो उनको थोड़ा सा बेहतर होता है कि वो फील करते हैं। जस्ट वो इंस्टेंट रिजल्ट होता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। कोशिश ये की जाए कि मेडिकेशन से बचा जाए, ज़्यादा पेन किलर मेडिसिन और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, ये हमारे स्टमक को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, स्टमक को देता है, लिवर को देता है, किडनीज को देता है। ठीक है डॉक्टर साहब, और मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि रमज़ान मुबारक में डॉक्टर साहब की क्लिनिक की क्या टाइमिंग है और एड्रेस क्या है, और नंबर भी एक दफ़ा आप दोबारा रिपीट कर दीजिए। जी, क्लिनिक की टाइमिंग जो है वो हमने रखी है 12 बजे से 4 बजे तक। ठीक है। और नंबर मेरा नोट कर लीजिएगा 0310 2913 एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं 0310 2913 सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने डिस्कस किया था अभी आपकी 2 ब्रांचेस हैं, या जी, एक पे ही अभी आप होते हैं? जी। दूसरी पे भी होते हैं? दूसरी में अल्टरनेट डेज में होते हैं। अल्टरनेट डेज? जी, अल्टरनेट डेज में होते हैं कि मंडे और वेडनेसडे लैंडी क्लिनिक में होता है। सही। फर्स्ट क्लिनिक, और सेकंड क्लिनिक में जो है वो 4 डेज होते हैं, जिसमें टाइमिंग जो है ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे एंड संडे, सैटरडे ऑफ करते हैं। ये कहाँ पर होते हैं? ये कोरंगी में। कोरंगी में। तो डॉक्टर साहब की एक क्लिनिक लांडी में है और एक है कोरंगी में, और जो कि टाइमिंग है वो डॉक्टर साहब ने आपको बता दी है, और नंबर भी आपके पास आ जाता है। अगर आपको मज़ीद राब्ते के लिए करना है तो डॉक्टर साहब व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल होते हैं, वो आपकी टीम उनको राब्ता आपसे करेगी। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि और अगर कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ आपको हैं तो आप डायरेक्टली डॉक्टर साहब के व्हाट्सएप पे आप उनकी रिपोर्ट्स, जो भी आपको प्रॉब्लम है, रिपोर्ट्स आप भेज सकते हैं। रिपोर्ट देख के फौरी आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करेंगे, और ज़रूरत हुई अगर आप कहीं कराची से बाहर हैं तो वो एक अलग बात है, और अगर कराची में रहते हुए तो डॉक्टर रिपोर्ट लेके आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। वो अगर रब्ता करना चाहे तो वैसे तो कराची से बाहर भी है, कोई इशू नहीं है, व्हाट्सएप पर आप बता सकते हैं, हम एडवाइस दे सकते हैं आपको, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा डॉक्टर, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि लाइक जो ट्रैवल नहीं कर पाते और उनकी कोई होते भी नहीं उनकी टेक केयर करने वाले, अगर वो आपको व्हाट्सएप करें अपनी सारी जो भी उनकी टेस्ट वगैरह हैं, तो क्या हमारी डिलीवरी की सहूलत है? जी बिल्कुल। अभी हमने तकरीबन कोई 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, इंशाल्लाह हमने ये फैसिलिटी अवेल कर दी है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग काफ़ी दूर दूर से आते थे, फर्स्ट विजिट या सेकंड विजिट में वो चले जाते हैं। अब काफ़ी कुछ लोग हैदराबाद से आते हैं, कुछ इस्लामाबाद से आते हैं, कुछ हमारे इंटीरियर सिंध से आते हैं, तो उनके लिए ये फैसिलिटी हमने कर दी है कि वो रब्ता करें, हमसे डिस्कस करें। और ये फैसिलिटी कहाँ तक है डॉक्टर साहब? ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान। और क्या लेकिन बेसिक एक चीज़ थोड़ी सी कहते हैं कि आपका एड्रेस वगैरह, आपकी जो भी लोकेशंस हैं वो ज़रा बेहतर हो, क्योंकि उसमें फिर प्रॉब्लम हो, ताकि डिस्टर्बिंग ना हो, ऑर्डर आगे पीछे ना जाए। और डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी मैंने आपसे पूछनी थी कि जैसे कि आपने बताया कि ऑल ओवर है, वैसे तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या वो है हालत है, उसके हिसाब से आप मेडिसिन देते हैं, बट एक रेगुलर टाइमिंग आपकी डिलीवरी की क्या है कि लाइक कितने टाइम तक पेशेंट के पास पहुंच जाता है? देखें मैक्सिमम जो है वो 3 to 5 डेज़ के अंदर, वर्किंग डेज में 3 to 5 वर्किंग डेज। सही, 3 to 5 डेज। 3 to 5 डेज। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। और जी तैमूर भाई जी, हम ताहिर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, हमने इससे पहले हुकूक लिबास भी डिस्कस किया, और फिर वहाँ पे आपने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की कि तो आज थोड़ा सा हम आखिरी मूवमेंट चल रहे हैं हमारे ट्रांसमिशन के आज की, तो नौजवानों को कुछ पैगाम दे। आज हम देखते हैं कि नौजवानों का हुस्न अखलाक अपने माँ बाप के साथ ठीक नहीं है, मतलब हम जो है ना नहीं समझ पा रहे कि इनकी वैल्यू हमारे घर में क्या है। तैमूर देखें, माँ बाप की वैल्यू बस ये जहन में रखिए कि वो सदा जो आज नौजवान घरों में सुन रहे हैं माँ बाप की शक्ल में,
भले वो जिस अंदाज के भी हैं, डांटें प्यार करें जो भी है, वो आवाज़ आपके पास अभी मौजूद है, कल वो नहीं होगी। बस इस चीज़ का ख्याल रखिए, वो कल वो आवाज़ नहीं होगी। कल आप तरसेंगे उस आवाज़ को सुनने के लिए जैसे मैं तरसता हूँ। बिल्कुल। तो माँ बाप की आवाज़ को समझने के लिए, सुनने के लिए, देखिए एक चीज़ को जहन में रखिएगा, माँ बाप दुनिया के जो बेहतरीन आपके दोस्त हैं ना, इसको गिरह में बांध लीजिएगा। दुनिया के जो आपके बेहतरीन दोस्त हैं, आपके सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप हैं जो बेगर्ज हैं आपके साथ। इसके अलावा कोई दोस्त नहीं है आपका, कोई दोस्त नहीं है। जो भी है वो सब गर्ज के साथ हैं। ये एक वाहिद रिश्ता है जो बेगर्ज है आपके साथ। ये वाहिद रिश्ता है दुनिया का जो जब बिछड़ जाता है ना फिर नहीं मिलता। तो उनकी कदर कीजिए और उनकी दुआएं लीजिए। उनकी दुआएं उनके जाने के बाद आपके साथ रहेंगी। और जिनके माँ बाप जा चुके हैं वो उनकी कब्र पर जाएं, जाके उनकी फातिहा करें वहाँ पर। और मेरी प्रैक्टिस है, मैं जाता हूँ अपने माँ बाप की कब्र में, मैं जाता हूँ जी, और मैं फातिहा भी करता हूँ, मैं जा करके उनके साथ बैठ के बातें भी करता हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत मैसेज आपने दिया है। और टाइम का थोड़ा सा हमारे पास इशू है, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे मेहमान हैं और अगर माँ बाप का मैसेज चल रहा है तो क्यों ना हम उसी मैसेज को कंटिन्यू करते हुए आपकी जानिब आते हैं, फिर इंशाल्लाह हम नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज अगर आप देना चाहें मुख्तसरन। जी, मैं यही अर्ज़ करूँगा कि वालिदैन हयात हैं तो उनकी रिस्पेक्ट की जाए, बिल्कुल उनके हर बात को फॉलो किया जाए ताकि आपके लिए ज़रिया निजात बने। और उनकी दुआओं का ये असर होता है कि इंसान को कामयाबी और तरक्की मिलती जाती है। सुभान अल्लाह। जी, डॉक्टर साहब। मैसेज ये दूंगा कि माँ की और बाप की दुआएं इंसान को अर्श से फर्श तक पहुंचा देती हैं। सुभान अल्लाह, क्या तो कोशिश ये करें कि उनकी दिल आज़ारी ना करें और खुश अखलाक तरीके से उनको सुने। और जाने के बाद ये वो दरख्त है, मैं एक बात कहता हूँ कि माँ बाप वो दरख्त हैं कि ये जड़ से भी उखाड़ दिए जाए ना, लेकिन आप जब भी उस जगह पर जाकर बैठेंगे ये आपको अपनी नमी ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। तैयबा, अगर आप एक लाइन तैयबा यहाँ हैं, हमारे साथ हैं जी, तैयबा? मैं हूँ। ओके जी, एक लाइन में अगर आप अपना मैसेज कन्वे कर दें। मैं बस ये कहूँगी आजकल के नौजवानान से कि ये जो ओल्ड एज हाउसेस जो खुले हुए ना, खुदारा हाथ जोड़ के कहती हूँ उन्हें बंद कर दें। माशाल्लाह, बहुत अच्छा मैसेज पहुंच गया हमारे पास। नात चलें जी, माशाल्लाह से हमारे पास नात खां है और हम उनकी जानिब आते हैं। और नाम ले लीजिए। जी जी जी, ज़ुएब शाह कादरी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चले जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, आप नात पढ़ें। हाँ अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, आपसे हम चाहते हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह कल ज़िंदगी रही तो सेम टाइम पे आपसे मुलाकात होगी। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का एहसान है हम लोगों पे हर आन, ऐ रहमत रमज़ान। फिर एक बरस बाद है एक माह